ફ્રેન્ડ્સ, જે પણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ગ્લોબલ સિનારીઓ અને એમાં પણ સુરત જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટનો આખો હબ છે, ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટની છે એમાં સુરત એક એવો પાર્ટ ભજવે છે અને સાથોસાથ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મટીરિયલ સેગમેન્ટ જે છે, યાન, જરી અને એની સાથે જોડાયેલા અલાઇડ જે પણ વસ્તુ છે એના ઉપર આજે આપણને અમિતભાઈ મુલાણી એ એક્સપોર્ટની બધી વિગત સાથે સમજાવવાના છે. તો આપ સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત છો અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું કાર્યક્રમની દોર આગળ વધારવા માટે મૃણાલભાઈ શુક્લાને વિનંતી કરીશ કે વેલકમ સ્પીચ આપશે અને આપણે આગળ કાર્યક્રમ વધારશું. નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ. રવિવારની સવારની ગુડ મોર્નિંગ પહેલી વાર તો આવી જ હોય. ફરી એકવાર થઈ ગયા. ગુડ મોર્નિંગ. ધેટ્સ ગ્રેટ. મંચસ્થ મહાનુભાવો, મારા લાડીલા મંચસ્થ મહાનુભાવો એવા આજના આપણા સૌના લાડીલા ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટમાં જેમણે નવી સીમાઓ એમ કહીએ ચેમ્બરના પરિપ્રેક્ષ્યથી જો હું વાત કરવા જાઉં તો ચેમ્બરને એક નવા વિચારને મૂર્તિમંત કરવા માટે, એને આગળ દોરી જવા માટે મિસ્ટર અમિત મુલાની, જેના વ્યક્તિત્વ વિશે વાત કરીએ તો સંક્ષિપ્તમાં જો કહેવું હોય તો ચેમ્બરના આ એકમાત્ર એવો ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો કોર્સ અથવા કોઈ પણ કોર્સ એકમાત્ર એવો છે કે જેની કન્સિસ્ટન્સી 9 બેચ લગી રહી હોય અને એ એકલ લોકલ 10ની સંખ્યા. હવે જ્યારે કોઈ પણ ટ્રેનર સાથે, હવે કે ટ્રેનર નથી એટલે હમણાં મને કહ્યું કે અમારો ભાગીદારોને બધા પરિચય કરાવે. મેં કહ્યું તો અમે શું છીએ, અમે ભાગીદાર છીએ ને, સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ વી આર પ્રાઉડ ઓફ ઇટ. અમને વાતનું ગૌરવ છે કારણ કે સત્વશીલ વ્યક્તિત્વના હાથમાં આ દોર છે. 9 બેચ અને 270 જેટલા લોકોને એક્સપોર્ટની દિશામાં એમણે કાર્યરત કર્યા. આજના આ વિષય અનલોક ગ્લોબલ માર્કેટ ફોર ટેક્સટાઇલ મટીરિયલ્સના આજના આપણા વક્તા અમિતભાઈ મુલાનીનું આપ સૌના તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે હું સ્વાગત કરું છું. એ જ રીતે મારા પુરોગામી, સતત જેમની પાસેથી કંઈ શીખવાનું મળે, પ્રેરણા મળે, એમને ગ્રુપ ચેરમેન કહીએ આ વર્ષના, અને ગત વર્ષે જેઓ માનનીય ટ્રેઝર રહી ચૂક્યા છે એવા મારા પ્રિય મિત્ર, જેમને મળો ત્યારે હંમેશા પ્રવાસનો અનુભવ થાય, એની સેન્સ ઓફ હ્યુમર, સટાયરમાં એટલું વજન હોય એવા કિરણભાઈ ઠુમર, મહેન્દ્રભાઈ ઝડફિયાનો પરિચય મને ગઈકાલે એકદમ સચોટ થયો. પેનલ ડિસ્કશન દરમિયાન હી વોઝ વન ઓફ ધ સ્પીકર્સ અને તેઓ સમુદાય, આજનો ગુજરાતી સમુદાય છે, ગઈકાલે પેલા હિન્દી ભાષી હતો ગૌતમભાઈ, તો અહીંયાથી એમનું વક્તવ્ય અડધે રસ્તે પહોંચ્યું અને બીજલભાઈએ ટવકો કર્યો કે આપ હિન્દીમાં બોલો ને. હવે આ રોબોટના યુગમાં ગૌતમભાઈ આપણે છીએ અને સ્વિચ દબાવો અને થઈ જાય, પણ મને ખબર નહીં કે આ માનવ, કારણ કે હ્યુમન રિસોર્સ મારો વિષય છે, પણ માનવનું સ્વિચ ઓવર આટલું ઝડપથી થાય અને ખાસ કરીને બોલવામાં, જાહેર વક્તવ્યમાં એમને સ્પીચ તરત એમણે ડાયવર્ટ કરીને હિન્દીમાં અસ્ખલિત ખૂબ સુંદર બોલ્યા એવા મહેન્દ્રભાઈ ઝડફિયાને પણ હું આવકારું છું. સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે અહીંયા આગળ શિફ્ટ થઈ એની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ, ત્યારે અમને થયું હતું કે ભાઈ આ લીગસીની શરૂઆત જ્યાંથી થઈ હતી એ સમૃદ્ધિ, તમે ચેમ્બર બોલો એટલે સમૃદ્ધિ આપોઆપ આવી જાય. એ નાનપરાના બિલ્ડિંગનું હવે શું કરશું, ઘણા બધા વિચારો કર્યા, પરંતુ ભાડે આપવું, આમ કરવું, તેમ કરવું, એ તો આપણો વિષય નથી. આપણે એને ગતિશીલ અને પ્રગતિશીલ પ્રવૃત્તિ માટે એને કાર્યરત રાખવું જોઈએ અને ચોક્કસપણે ગ્રોથ એટલે નફો એ અમે સમજતા હતા અને એને મૂર્તિમંત એ વિચારને કરવાનું કામ જેમણે કર્યું છે એવા અમારા મહેશભાઈ કમનાની શ્રી, ચેરમેન એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર SCCCI, બહુ સુંદર કાર્ય કરે છે અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એ કામ કરી શકે છે. અમે ત્યાં કશું એક પૈનું અમારું પ્રદાન નથી.
એ સંપૂર્ણ પ્રદાન એમનું છે. હું એમને પણ આવકારું છું. એમની સાથે સાથે સમૃદ્ધિ બિલ્ડિંગના 4થા ફ્લોર ઉપર સેજલ પંડ્યા અને નેન્સી એ 2 જણા પણ અમારા ઘણા બધા કોર્સને લોકો સમક્ષ મૂકે છે અને એની પણ કન્સિસ્ટન્સી એટલી જ સુંદર છે. એની સાથે રિસર્ચનું R&Dનું કામ પણ અને ટેસ્ટિંગનું કામ પણ સુંદર રીતે કરે છે. ગઈકાલે સેજલબેન પણ અહીંયા આગળ વક્તા હતા. આપણે સેજલબેનને પણ આવકારીએ. ભાઈ શ્રી સુરેશભાઈ મંચસ્થ છે, તામિલનાડુથી આવ્યા છે. હું એમને 2 દિવસ પહેલા મળ્યો, સિટેક્સમાં મળ્યો તો અને પાછો મળ્યો. મેં રોકાયા છો તો કે ના, હું ગયો અને પાછો આવ્યો. આ એમનું એક વ્યવસાય માટેનું, પોતાના વ્યવસાય માટેનું, પોતે જે ટેરિટરી તામિલનાડુમાં છે અને શીખવા માટેની, જાણવા માટેની, ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માટેની ધગશ એ મેં એમનામાં જોઈ. સુરેશભાઈ, આપનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. સંખ્યા બહુ મહત્વની નથી, કારણ કે એવું કહેવાયું છે કે પ્રેક્ષક નહીં કહેવા અને ભાવક કહેવા. પ્રેક્ષકોમાં સંખ્યા ગણવાની હોય, ભાવકોમાં ભાવ જોવાનો હોય. એટલે આપ સૌ ભાવકોને પણ હું આવકારું છું અને આપ સૌની વચ્ચે અમારા ડૉક્ટર ગૌતમભાઈને પણ હું આવકારું છું. આજનો વિષય જે છે તે સટીક વિષય છે. આપણે 21મી સદીના ગ્લોબલાઇઝેશનના સમયમાં છીએ અને તમારા બિઝનેસને સ્કેલઅપ કરવો અને સ્પીડમાં સ્કેલઅપ કરવો. આપણે અમારા ગત વર્ષના પ્રમુખ M84માં એમણે 84 દેશોમાં આ વ્યવસાયને, આપણા વ્યવસાયને દોરી જવાની વાત કરી. એમણે કહ્યું કે થિંક ગ્લોબલી, એક્ટ લોકલી. તમારું કાર્યસ્થાન ભલે ભારત હોય, સુરત હોય, પરંતુ તમારે એને સીમાડાઓ વળોટી જવા. મારી સામે યુવાન વર્ગ બેઠો છે, ભારત યુવાનોનો દેશ છે. ત્યારે આપણે આપણી વાતને સ્કેલઅપ કેવી રીતે કરવી, આપણે ગ્રોથ કેવી રીતે કરવો અને ઝડપથી કરવો. સાહેબ, ઝડપથી કરવો એ બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે ગઈકાલે ખરીદેલો મોબાઈલ આજે જૂનો કહેવાતો હોય તે સમયમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે ઝડપથી વિકાસ કરવો એ આપણે માટે આવશ્યક છે. અને વિકાસ કરવો હોય તો બુદ્ધું રહીએ તો ના ચાલે. આપણે વિકાસ કરવો હોય તો વી હેવ ટુ બી upgraded. We have to upgrade our knowledge every time. આ ખાલી ખુરશીઓ હજુ આપણને ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એવું આપણને કહી રહી છે, પરંતુ નિરાશાનો એકમાત્ર લેશ માત્ર ભાવ મનમાં નથી, કારણ કે સમય એનું કામ કરશે. જે લોકો શીખવા માટે પ્રોએક્ટિવ છે, તત્પર છે, એ સામેથી આવશે અને જે બાકી રહ્યા છે તે દિવાલ સરસા થઈ જશે. હવે કોઈ રસ્તો સૂચતો નથી, ત્યારે આવશે. પરંતુ એ બંને વાતોને આપણે આયોજક તરીકે પોઝિટિવલી લેવી જોઈએ. આવનાર સમયમાં જે શહેરમાં આપણે વસીએ છીએ તે શહેર મુખ્યત્વે 2 ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલો છે. એક ટેક્સટાઇલની વાત કરો અને એક ડાયમંડની વાત કરો. આ બંને ઇન્ડસ્ટ્રીનો આ શહેરના વિકાસમાં મેજર ફાળો છે. હું જ્યારે શહેરની વાત કરતો હું ત્યારે મૂળ સુરતી રહીશ હોવાને નાતે ચોક્કસપણે ગૌરવ સાથે એવું કહીશ કે આ શહેર એ મૂળ સુરતીઓનું માત્ર નથી. આ શહેર એ તમામ લોકોનું છે કે જે લોકોએ આ સુરતના વિકાસને મનમાં લઈને ખૂબ બધું કાર્ય કર્યું છે. 15 લાખથી 18 લાખ લોકોને રોજી રોટી આપતો આ વ્યવસાય, ટેક્સટાઇલ વ્યવસાય હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. ચેમ્બરની પણ એ ભાવના રહી છે કે આપણે અહીંયા આગળ ટેક્સટાઇલને રિલેટેડ વેલ્યુ ચેઇનના આપણે એક્ઝિબિશન્સ કરતા રહીએ છીએ. હમણાં હું કોઈકને કહેતો હતો કે જ્યારે આપણે અગાઉ એક્ઝિબિશન્સ કરતા ત્યારે આવા સેમિનારોનું આયોજન કરતા, અને ફરી પાછો એ વિચાર આપણે અહીંયા આગળ શરૂ કર્યો છે અને આજે આપણે એવા જ એક સેમિનારમાં આવ્યા છીએ. ભારતનું પોલિએસ્ટરનું આઉટપુટ એ 90% જેટલો મહત્વનો ફાળો ધરાવે છે. આપણે એ શહેરમાં છીએ જ્યાં આગળ રોજીરોટી મળે છે. સુરતની નજીકમાં જ્યારે નવસારીની નજીક ગાર્મેન્ટ પાર્ક બની રહ્યો છે, સુરતને ગાર્મેન્ટ હબ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ટેક્સટાઇલ ઉપર અને ગવર્મેન્ટની પણ નજર. અમે જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટરને મળવા ગયા ત્યારે તેમણે પણ આપણી ઘણી બધી વાતોને આવકારી હતી અને ધ્યાનથી આપણી વાતોને સાંભળી હતી. સુરતમાંથી કાપડનું એક્સપોર્ટ વાર્ષિક ધોરણે $5 બિલિયન જેટલું થઈ રહ્યું છે. એ નોંધપાત્ર ફાળો સુરતનો રહ્યો છે.
સુરતનું ટેક્સટાઇલ સેક્ટર વાર્ષિક 12 થી 15% દરે વૃદ્ધિ પામી રહ્યું છે. એ ખરેખર આંખો પહોળી કરી નાખે એટલી વાસ્તવિકતા છે. જે સિન્થેટિક કાપડની વૈશ્વિક માંગમાં વધારો થવાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં વધતી માંગ સાથે સુરતના ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટના તાજેતરના વર્ષોમાં 10 થી 12%નો વૃદ્ધિ દર જોવા મળ્યો છે. સુરત શહેર સિન્થેટિક સાડીઓ, ડ્રેસ મટીરિયલ અને હોમ ટેક્સટાઇલનું નોંધપાત્ર એક્સપોર્ટર છે, જેની વૈશ્વિક સ્તરે ખૂબ જ માંગ છે. સુરતમાંથી ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની માંગ 2030 સુધીમાં 20% વધવાની સંભાવના છે, કારણ કે ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એડવાન્સ ટેક્સટાઇલ મટીરિયલ પર વધુને વધુ આધાર રાખે છે. ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ વર્ષ 2030 સુધીમાં $1412.5 બિલિયન સુધી પહોંચવાની ધારણા સાથે સિન્થેટિક ફાઇબરની માંગ, કે જેમાં સુરત શ્રેષ્ઠ છે, તે નોંધપાત્ર રીતે વધવાની તૈયારીમાં છે. વૈશ્વિક ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનું માર્કેટ 2027 સુધીમાં $274.29 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે 5.3%ના CAGRથી વધી રહ્યો છે. આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી જ્યારે આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કરતા હોય, 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની વાત કરતા હોય, ત્યારે ભારતનો મહત્વનો ગ્રોથ એન્જિન જેને કહી શકાય એવું આ સુરત, એનો ફાળો સ્વાભાવિકપણે સિંહ ફાળો હોવો જોઈએ. અને એ દિશામાં આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ અને ઘણું બધું કામ કરવાનું બાકી છે. અને અત્યારે હું જ્યારે આવતો હતો મારા ઘરેથી, ત્યારે રસ્તામાં જોયું કે 15મી ઓગસ્ટની તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને એમાં કોટન તિરંગાઓ બંને બાજુ લાગી રહ્યા છે. સુરતને આવી ઘણી બધી તકો વારંવાર મળતી હોય છે. મને ધ્યાન છે કે મારા ક્લાયન્ટ જ એ દિશામાં ખૂબ મોટું કામ કરી રહ્યા છે. સચિવ સ્થિત નામ નહીં આપીશ, પરંતુ આપણે ત્યાં આગળ આવા ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલના અને વેલ્યુ એડિશનનું ખૂબ બધું કામ સુરતમાં થઈ રહ્યું છે. પરંપરાગત રીતે સાડીઓનું શહેર ગણાતું સુરત હવે આ દિશામાં પણ આગળ વધી રહ્યું છે. ત્યારે આવનારા દિવસો એ ચોક્કસપણે આપણે માટે ખૂબ આશાવાદ હશે. મારી આટલી વાત સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું અને ફરી એકવાર આપ સૌને હું આવકારું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય. થેન્ક યુ મૃણાલભાઈ. આપે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ડિટેલ બારીકાઈથી આ જે અહીંયા વિતરણ કર્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું કાર્યક્રમનો દોર આગળ વધારતા માનનીય શ્રી કિરણભાઈ ઠુમ્મરને વિનંતી કરીશ અને સાથોસાથ મૃણાલભાઈ શુક્લાને વિનંતી કરીશ કે અમિત આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ બુકે છે, પરંતુ એ ફૂલોનો નથી. સુરતની ઓળખ એ સાડી વાળી જે લાંબો સમય સુધી માનનીય શ્રી કિરણભાઈ ઠુમ્મર કાર્યક્રમની જે સમગ્ર રૂપરેખા છે એના વિશે આપણને માહિતગાર કરશે. કિરણભાઈ ઠુમ્મર એ પાસ ટ્રેઝરર રહી ચૂક્યા છે અને અત્યારે ગ્રુપ ચેરમેન તરીકે ચેમ્બરની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. માનનીય કિરણભાઈ ઠુમ્મર. તો મૃણાલભાઈએ મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવોનો સવિશેષ પરિચય આપ્યો છે, એટલે હું આમાં વધુ સમય નહીં લેતા મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવ અને આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું ફરીવાર. મિત્રો, સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, એનું ગુજરાતી નામ કહી શકાય કે દક્ષિણ ગુજરાતનું વેપારી મહાજન મંડળ. આજે જ્યારે 1940માં આ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, ત્યારે એનો ઉદ્દેશ એવો હતો કે સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વેપારીના જે મહાજનો છે એ લોકો એકત્રિત થાય અને પોતાના નાના મોટા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લાવે. સંસ્થાની સ્થાપના થઈ, સમય જતો ગયો, ત્યારબાદ આમાં ધીમે ધીમે પ્રશ્નોનો પણ વધારો થતો ગયો અને તેમાં ઉમેરાયું કે આપણા જે ઉદ્યોગો, આ વિસ્તારના ઉદ્યોગો ચાલી રહ્યા છે, તેને પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો નડે છે. તો એ ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ ચેમ્બર દ્વારા લાવવું. ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા જે કોઈ પણ નવી નીતિઓ જાહેર કરવામાં આવે છે, તો નવી નીતિઓમાં આપણા આ વિસ્તારના ઉદ્યોગોને શું લાભ થાય, તેમને શું આમાં યોગ્ય પ્રદાન મળી શકે, તેના માટેની પણ રજૂઆતો ચેમ્બર કરવા લાગ્યું અને ધીમે ધીમે ચેમ્બરનો વ્યાપ ખૂબ વધતો રહ્યો. ઉદ્યોગો તો ચાલ્યા, તેમાં સારી સારી નીતિઓ પણ આવી, પણ ઉદ્યોગો દ્વારા જે માલ બને તેના વેચાણનું શું? તો તેના માટે આજથી 15 વર્ષ પહેલાં ચેમ્બરે એક નવો અભિગમ અપનાવ્યો એક્ઝિબિશનનો, અને 2009થી
ચેમ્બર અલગ અલગ ઉદ્યોગોના અલગ અલગ વસ્તુઓના એક્ઝિબિશનો શરૂ કર્યા. તો આ એક્ઝિબિશન માત્ર સુરત અને ભારત પૂરતું કહી શકાય. તો તેના માટે ભારત અને સુરતના ઉદ્યોગકારો તો આ એક્ઝિબિશનનો લાભ લઈ અને ખરીદ વેચાણ તો કરતા, પણ આનાથી આગળ શું? આજે જ્યારે સુરત ટેક્સટાઇલ સિટી કહેવાય છે, તો ટેક્સટાઇલ સિટી સુરત હોવાથી ખાલી સુરત પૂરતું એ સીમિત ન રહે, પણ ભારત અને સમગ્ર વિશ્વમાં એની વ્યાપના ફેલાય તે ખૂબ જરૂરી છે. અને તેના જ એક ભાગરૂપે છેલ્લા 2 વર્ષથી ચેમ્બર દ્વારા એક નવો અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો કે ચેમ્બરના મેમ્બરો એક્સપોર્ટ કેવી રીતના કરી શકે. આજે લોકો લોકલ બિઝનેસ તો કરે જ છે, પણ એક્સપોર્ટ માટે પણ ઘણા બધા દરવાજાઓ આજે બંધ છે. તો ચેમ્બરે એ દરવાજા ખોલવાનો આજે પ્રયત્ન કર્યો અને ગયા વર્ષે તત્કાલીન પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયા દ્વારા એક મિશન 84નો એક્સપોર્ટનો એક મોટો પ્રોજેક્ટ લાવવામાં આવ્યો કે જેના અંતર્ગત ચેમ્બરના સભ્યો આજે જે કોઈ પણ પોતાની પ્રોડક્ટ બનાવતા હોય તેને એક્સપોર્ટ કેવી રીતે કરવું, તેનું માર્કેટ કેવી રીતના શોધવું, તેના માટે મેમ્બરોને આપણે કેવી રીતના મદદરૂપ થઈ શકે. અને તેના ભાગરૂપે આપણને એક નવું આશાનું કિરણ મળ્યું હોય તો અમિતભાઈ મુલાણી. ગયા વર્ષે અમિતભાઈ મુલાણી ચેમ્બરના સંપર્કમાં આવ્યા અને તેમનું ઓલરેડી એક્સપોર્ટનું એક ટ્રેનિંગ સેન્ટર તો ચાલતું જ હતું, પણ ચેમ્બર સાથે એ જોડાયા અને ચેમ્બરના ઓફિશિયલ ટ્રેનર તરીકે તેમણે સેવા આપવાનું નક્કી કર્યું. અને મૃણાલભાઈ માહિતી આપી તેમ ગયા વર્ષમાં 9થી પણ વધુ અલગ અલગ સેશન દ્વારા 250થી પણ વધુ ઉદ્યોગકારોને એક્સપોર્ટ કેવી રીતના કરવું અને જેનું એક્સપોર્ટ ચાલે છે તે એક્સપોર્ટ કેવી રીતના વધારવું તેના માટે ખૂબ બધી માહિતીઓ પ્રદાન કરી, ખૂબ બધી ઉપયોગી વસ્તુઓ પ્રદાન કરી. અને ચેમ્બરના કોઈ પણ કાર્યક્રમો હોય તેમાં એમનો ખાસ એક આગ્રહ રહેતો કે આપણે કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, ટેક્સટાઇલ હોય, ફાર્મા હોય, કેમિકલ્સ હોય, ડાયમંડ્સ હોય, તો દરેક ઉદ્યોગકારો એક્સપોર્ટ કેવી રીતના કરી શકે તેના માટેની આપણે માહિતી આપવી જોઈએ. તો તેના જ ભાગરૂપે આજનું આપણું આ જે સેશન છે તેમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોમાં એક્સપોર્ટની શું સંભાવનાઓ રહેલી છે, ટેક્સટાઇલના ઉદ્યોગકારો એમાં પછી સાડી મેન્યુફેક્ચરર હોય, ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર હોય કે યાર્ન મેન્યુફેક્ચરર હોય, તે લોકો એક્સપોર્ટ કેવી રીતના કરી શકે અને તેના કેવા કેવા રસ્તાઓ છે તે તમામ માહિતી આપવા માટેનો આજનો આપણે આ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને ખાસ અમિતભાઈ મુલાણી આપણને આના વિશે ખૂબ જ રસપ્રદ માહિતીઓ આપવાના છે. તો હું વિનંતી કરીશ કે અમિતભાઈ મુલાણીને કે આજના આ સેશનમાં આપની પાસે જે પણ કંઈ ભાથું છે, સમય તો આપણી પાસે ખૂબ ઓછો છે કારણ કે આ ભાથું આપણે સમગ્ર લેવું હોય તો આખો કોર્સ એમનો કરવો પડે, પણ આ લિમિટેડ સમયમાં જે કાંઈ પણ મહત્વની વસ્તુઓ પ્રદાન કરી શકે તેના માટે આપણે હું વિનંતી કરીશ અમિતભાઈ મુલાણીને. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ કિરણભાઈ. કાર્યક્રમનો દોર આગળ વધારતા આપણે જે આ કાર્યક્રમ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ એ અંડર ઓફ ધ GFRRC છે, ગ્લોબલ ફેબ્રિક રિસર્ચ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર. મિત્રો, મને તમને જણાવતા ખૂબ આનંદ થશે કે ચેમ્બર એ ફક્ત ને ફક્ત લાઇઝનિંગ જે એક માઇન્ડસેટ છે કે લાઇઝનિંગનું કામકાજ કરે છે. ધંધાના પ્રશ્નોને વાચા આપતી સંસ્થા એટલે મહાજનોની આ ચેમ્બર, પણ આની સાથે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનું જે આ GFRRCનું સેન્ટર છે એ ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતના થઈ કે એના ઉપર રિસર્ચ કઈ રીતના થઈ કે રિસોર્સ કઈ રીતના આપણે એને ફાઇન કરી શકીએ, આના માટેનું GFRRCનું આ જે સેન્ટર છે એના વિશે આપણને સેઝલબેન જે છે એ ડિટેલમાં માહિતી આપશે. હું સેઝલબેનને વિનંતી કરીશ કે આપણા GFRRCમાં ચાલતા કોર્સ કયા કયા ટેસ્ટિંગ યુનિટો છે અને કયા કયા નવા કોર્સ આપણે ભવિષ્યમાં લાવી રહ્યા છીએ અથવા કયા કયા અત્યારે ચાલે છે એના વિશે ડિટેલમાં માહિતી આપશે. Good morning. GFRRC, Global Fabric Resource and Research Center. It is an initiative of SJCCI. ચેમ્બરે જ આ એક સેન્ટર ઊભું કર્યું છે. ચેમ્બરની એક્ટિવિટીઝ આપણને કિરણભાઈએ કીધી, તો ચેમ્બરની એક્ટિવિટીઝ છે ફોર હોલ ઇન્ડસ્ટ્રી. આખી સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરૂચથી લઈને ઉમરગામ સુધી એ વેપારી એ ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોને રજૂ કરવા, એનું કામ કરવું તે ચેમ્બર કરે. પણ ચેમ્બરમાં ખાલી ને ખાલી ટેક્સટાઇલ પર ફોકસ કરીએ એ છે GFRRC. GFRRC આજથી 10 વર્ષ પહેલાં ચેમ્બરના જ જે ટેક્સટાઇલ સ્ટેક હોલ્ડર્સ હતા એમણે આ ઊભું કર્યું. આપણે એક ફેબ્રિકની લાઇબ્રેરી બનાવી છે, જેવી બુક્સની લાઇબ્રેરી હોય એવી આ ફેબ્રિકની લાઇબ્રેરી છે.
ત્યાં યાર્ન અને ફેબ્રિક લગભગ 1000+ સેમ્પલ્સ છે. તમને એ સેમ્પલ્સ જોવા મળે, તમને એ સેમ્પલનો સોર્સ મળે, તમારે અગર એને બનાવવા છે તો તમને એની ટેકનિકલ ડિટેલ્સ મળે. એ સિવાય આપણે સેમિનાર્સ, વર્કશોપ્સ, ટેક્સટાઇલ વીક એવા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ અને ટેક્સટાઇલમાં આગળ ગ્રોથ કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે એમાં ચાલુ કર્યા છે કોર્સીસ. તો ટેક્સટાઇલ રિલેટેડ કોર્સીસ આપણે કરાવીએ છીએ. બહુ બેઝિક યાર્ન પ્રિપરેટરી, ટેક્સટાઇલ એટ અ ગ્લાન્સ, વીવિંગના કોર્સ, ફેબ્રિક આઇડેન્ટિફિકેશન, સર્ક્યુલર નીટિંગ, ફેબ્રિક પ્રોસેસિંગ, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ, ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, આ બધા જ કોર્સીસ થાય છે. એ સિવાય જે અત્યારે આપણે આજે જઈ રહ્યા છીએ, અમિત મુલાની સર કરાવે છે, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ મેનેજમેન્ટ, પાવર ઓફ પબ્લિક સ્પીકિંગ, ગૂગલ ફોર વર્કશોપ, ડિજિટલ માર્કેટિંગ, આ બધા જ કોર્સીસ ત્યાં કરવામાં આવે છે. એ સિવાય આપણે હમણાં એક નવું ચાલુ કર્યું છે, દેટ ઇઝ ફેબ્રિક ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી. એટલે ફેબ્રિક ટેસ્ટિંગ એટલે ઘણીવાર આવે છે ઇન્ક્વાયરી, મેડમ કમ્પ્લેન નહીં, આપણે ફેબ્રિક કન્સ્ટ્રક્શન એનાલિસિસ કરી આપીએ છીએ. કોઈની પાસે કપડું આવ્યું અને એ બનાવવું છે તો એની ટેકનિકલ ડિટેલ્સ શું હોય, એમાં વાટ શું છે, વેફ શું છે, રેડ પીક, એ કાઢીને એમને મશીન પર કેવી રીતે સેટ કરવું, એ આપણે રિપોર્ટ કાઢી આપીએ છીએ. અને આપણે રિપોર્ટ નેક્સ્ટ ડે આપી દઈએ છીએ. 24 અવર્સમાં તમને રિપોર્ટ મળી જાય. થેન્ક યુ. અને આપણી પ્રાઇસ બહુ રિઝનેબલ પ્રાઇસ છે. કદાચ આપણે એવું નહીં કહીએ કે બધાથી બહુ જ ઓછી છે, પણ રિઝનેબલ છે. નેક્સ્ટ ડે તમને સેમ્પલનો રિપોર્ટ જો 1500 રૂપિયામાં મળતો હોય તો એ પ્રાઇસ ઘણી ઓછી કહી શકાય. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સેજલબેન. જીએફઆરઆરસી એવું સેન્ટર છે કે અગર તમે ધંધો કરો છો અથવા તો ધંધામાં આવવા માંગો છો તો એ ધંધાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ શકે, મશીનની કઈ રીતના ટેકનિકલ સમજ હોય, એનું ફિઝિકલ અને પ્રેક્ટિકલ્સ, તમને થિયોરિટિકલ્સ અને પ્રેક્ટિકલ્સ એ ત્યાં જ ચેમ્બરમાં જીએફઆરઆરસીના સેન્ટર ઉપર તમને થિયોરિટિકલ પણ સમજાવે અને સાથોસાથ વેલ નોન કંપનીમાં આપણને વિઝિટ કરવા પણ લઈ જાય. એના પછી એ જ પ્રોડક્ટને આપણે કઈ રીતના ડિજિટલ માર્કેટિંગ થકી કે ફિઝિકલ માર્કેટિંગ થકી આપણે બિઝનેસને કઈ રીતના આગળ વધારી શકીએ. અગર એ જ વસ્તુને આપણે એક્સપોર્ટ માર્કેટ પર જવું છે તો એને કઈ રીતના એક્સપોર્ટ માર્કેટ પર એ જ પ્રોડક્ટને પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીએ. તો એન્ડ ટુ લાસ્ટ પ્રોડક્ટ, જે એન્ડ ટુ લાસ્ટ આખો બિઝનેસ છે એ જીએફઆરઆરસીમાં આપણને મળે છે. જે ટેક્સટાઇલ બિઝનેસની જે પૂરી સાયકલ ચેન છે એનો બિઝનેસ આપણને ત્યાં જાણવા મળે છે અને એમાં કામ કરવા પણ મળે છે. થેન્ક યુ સેજલબેન. હવે હું માનનીય ચેરમેન અને એજ્યુકેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર જે એચજીસીસીઆઈના ચેરમેન એવા મહેશભાઈ પમનાનીને વિનંતી કરીશ કે એ માનનીય શ્રી અમિતભાઈ મુલાણીનું આપણને ઇન્ટ્રોડક્શન આપશે. મંચ પર અમારા વર્તમાન અને ભૂતકાલીન બંને ટ્રેઝરર બેઠા છે, નાણાંની કોથળીઓ લઈને, અને સમૃદ્ધિ બિલ્ડિંગ સાચવવાનું કામ મને આપ્યું છે. અને સમૃદ્ધિમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં સૌથી વધુ કોઈએ સમૃદ્ધિ મેળવી હોય તો એ અમારા અમિતભાઈ મુલાણી છે. વેલ, આખો વિચાર લગભગ 1-1.25 વર્ષ પહેલાનો છે, જ્યારે રમેશભાઈએ 84 બંદરો પરથી વાવટા ફેરવવાની શરૂઆત કરી. ત્યારે એક વસ્તુ અમને જાણવા મળી કે ભાઈ, પ્રધાનમંત્રી એમ માંગે છે કે આપણી ઇકોનોમી 5 ટ્રિલિયન કેવી રીતે બને, 1 ટ્રિલિયનનું આપણે એક્સપોર્ટ કેવી રીતે કરી શકીએ, વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં આપણું નામ કેવી રીતે આવી શકે, આપણે 3rd પોઝિશન પર કેવી રીતે પહોંચી શકીએ. અને બધાનો એક જ નિચોડ હતો કે ભાઈ એક્સપોર્ટ વધારો. અને એક્સપોર્ટ વધારવા માટે અહીંયાના જે બધા ઉદ્યોગકારો છે એને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન મળે, એના માટે આવા કંઈક કોર્સ શરૂ કરવા. અમિતભાઈ સાથે મારી પહેલી મુલાકાત ગયા સ્પાર્કલના પ્રોગ્રામમાં થઈ. કિરણભાઈએ મને કહ્યું કે સાહેબ જરાક એમને સાંભળો. એટલે હું શાંતિથી બેસીને સ્પાર્કલના પ્રોગ્રામમાં મેં અમિતભાઈને સાંભળ્યું. અને પછી મને કિરણભાઈ પૂછ્યું, મને કંઈક કેવું? મેં કહ્યું ખરેખર સ્પાર્કલમાં એક સ્પાર્ક છે. અને મારે તો એમ કે મેં પછી સાથે મુલાકાત કરી તો સાહેબે કહ્યું કે હું તો જેમન જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ છું. એમને આખો પરિચય આપ્યો. મેં કીધું કે સરસ. એટલે મારા મગજમાં એક ગ્રંથિ બંધાય
કે સર સરસ મજાના કોઈ MBA કરીને આવેલા લાગે છે. પછી મેં પરિચય મેળવ્યો કે નહીં, હું તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કરેલો છું. મેં કીધું સરસ, હા એકદમ આટલું બધું વિરોધાભાસી. સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે, પ્રોફેસર તરીકે કામ કર્યું છે, અને ખૂબ એમને ફોરેન ટ્રેડમાં એક સરસ મજાનું એ હતું કે ભાઈ મારે કંઈક કરવું છે. અને એમણે ફોરેન ટ્રેડ, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ બધું પોતાના રીતે પોતાના બિઝનેસમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ બિઝનેસમાં શરૂ કર્યું. એક પછી એમ થયું કે એમને કે ભાઈ હું કરું તેવી રીતે બીજા બધા બી કરતા થાય. એટલે એમણે ભારત ઉડાન નામની એક આખી સંસ્થા ઊભી કરી છે. ચેમ્બરમાં સૌથી પહેલો અમે પ્રોગ્રામ આપ્યો કે સાહેબ તમે આ રીતે, તમે કે કોઈ સાહેબ કેટલા દિવસનું ગોઠવું. એટલે અમારા ચેમ્બરમાં કેવું છે, દર 2 કલાકનું સેશન હોય, એટલે એ પ્રમાણે અમે લોકો 16 દિવસનું આખું લેક્ચર ગોઠવ્યું. પછી મને સાહેબ સાથે જાણકારી મળી કે સાહેબ આપણે એના કરતાં 13 દિવસ અને 2.5 કલાકનું લેક્ચર રાખીએ, અને એ પ્રમાણે અમારું રીશિડ્યુલિંગ થયું. પણ મેં ક્યારેય એમને 2.5 કલાકનું લેક્ચર 2.5 કલાકમાં પૂરું કરતા જોયા જ નથી. 8 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય એટલે સાહેબ 7:45 હાજર હોય. અને બાય ચાન્સ કોઈ વાર વધારે વરસાદ કે કંઈ પાર્કિંગનો હોય તો પહેલાંથી મેસેજ આવી ગયો કે સાહેબ 5 મિનિટ મોડું થશે. બધું કંઈ સાહેબ આવો. અને પૂરું કરવામાં ક્યારેય 10:30 હોય જ નહીં. કોઈક વાર તો મારે કહેવું પડે. અને 3 કલાક અસ્ખલિત બોલવું, બરાબર ને, એ એક શાંત શક્તિ જોઈએ માણસમાં. અને એવી રીતે આખું લેક્ચર ડિલિવર કરે છે. લોકોને એમની ભાષાથી બહુ મજા પડે છે. બિલકુલ સરસ મજાના સુરતી અથવા તો એક કાઠિયાવાડી લહેકામાં આખું 13 દિવસ લેક્ચર લેવું. અને સૌથી વધુ મેઇન વસ્તુ કે 13મા દિવસે જ્યારે અમારું સર્ટિફિકેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય ત્યારે સરને બધાના નામ ખબર હોય, અને પાછું કોણે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ હતો નહીં હતો બધું ખબર હોય. એ એક જેને કહીએ ને એક સારા ટ્રેનરની નિશાનીઓ છે. સો અમિત મુલાની એનો લાંબો પરિચય આપી એના કરતાં એમના હસ્તે જ આપણે એમને સાંભળીએ કે સાહેબ એક્સપોર્ટને આગળ વધારવા માટે કેવી રીતે જવું જોઈએ. એક દિવસ મને કહે કે સાહેબ, મેં કહ્યું સાહેબ તમને કોઈ કોમ્પિટિશન નથી. તને એમને બહુ ફાઇન જવાબ આપ્યો, અરે મારા જેવા 100 અમિત મુલાની બી આવે ને તો બી આપણે એક્સપોર્ટને એટલું બધું આગળ વધારી શકીએ. એટલે એ જે ખાનદાની ખેલદિલી હોવી જોઈએ એના માટે બી આપણે એમને તાળી પાડવી જોઈએ. એન્ડ આઈ રિયલી સે કે જે જેમન જ્વેલરીમાં છે ને એવા જ આપણા સુરતના હી ઇઝ અ જેમ. સો ફ્લોર ઇઝ યોર્સ નાઉ સર. ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. એમ તો સાહેબે જો કે બહુ બધા શબ્દો મને મારા માનમાં કહ્યા છે, પણ હકીકતમાં એ બધાના ગુરુ છે. કારણ કે તમારામાંથી ઘણા બધાને રોયલ ક્લાસ વિશે ખ્યાલ હશે, તેમના હરતા કરતા છે. એટલે પહેલાં તો મોકો આપવા બદલ મારે તેમને સાહેબ, આમાંથી તો ઘણા બધા લોકોને હું ઓલરેડી પર્સનલી જાણું પણ છું. But I welcome you all in this beautiful session with the specific subject called explore the vast opportunities in the global export market. But export market with respect to the textile. When I am talking about the textile, it is a huge sector to be focused. तो वो બધું છે. કોઈ એવું નથી ને કે કોઈ ऐसा है जिनको खाली हिंदी समझ में आता हो, गुजराती नहीं समझ में आता हो, ओनली हिंदी, ठीक है, तो वी आर मूविंग फॉर द विद हिंदी. इन दैट केस बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है. और जब टेक्सटाइल बोलते हैं तो इटसेल्फ अगर हम एचएस कोड की बात करें तो चैप्टर नंबर 50 to 63 ये टेक्सटाइल को नॉमिनेट होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर. आप सोचो कोई एक ही ऐसा सेक्टर है जिनको इतने सारे एचएस कोड नॉमिनेट किए गए हैं, बिकॉज दिस इज द सेक्टर कि जहाँ पे एवरी प्रोडक्ट हैज देयर ओन स्पेशलिटी एंड उनका एक अपना बट ऑब्वियस परिचय है. तो आज मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बोलने के लिए यहाँ पे बुलाया गया, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू द SGCCI टीम, खास तौर पे जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है. मेनली हमारा फोकस ये है कि हम सब्जेक्ट को इस तरह से लेके जाए ताकि आप ये समझ पाए कि व्हाट काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विथ अस इन द फॉरेन मार्केट्स
और जब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो डेफिनेटली इंडिया इज नाउ पायोनियरिंग एंड वी आर मूविंग फर्दर वेरी वी कैन से स्विफ्टली टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। वैसे सर ने ऑलरेडी मेरे बारे में थोड़ा बताया है, बट प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और आई हैव डन माई मास्टर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत। फिर मैं प्रोफेसर था इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 साल के लिए, एंड राइट नाउ आई एम द ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कैसे करना होता है उसका ट्रेनिंग देता है। और उसके साथ साथ रिसेंटली वी हैव बीन एसोसिएटेड विथ सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनके थ्रू हमने टोटल 9 बैच, अभी हमारा 9वां बैच चालू है, 9 बैच हमने कंप्लीट किए हैं और 305 स्टूडेंट हैज बीन टेकन द बेनिफिट्स ऑफ इट। यू कैन से कि खाली स्टूडेंट नहीं बट एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे न्यू यंग जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अब आने वाले टाइम में कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये सेशंस चैम्बर के थ्रू कंप्लीट किया है। मेरी कंपनी का नाम एटलांटिको इंटरनेशनल है। मैं 2012 से एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ। हमारा मेन जो काम है वो मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल का है, जिनका एक्सपोर्ट हम 19 कंट्रीज में करते हैं। साथ में स्पेसिफिकली चॉकलेट ड्रिंक विच इज कॉल्ड कोको हाई, आप में से कई लोगों ने शायद वो देखा होगा या सुना होगा, सूरत बेस्ड कंपनी, जिनका एक्सपोर्ट अभी हम 3 कंट्रीज में करते हैं। एंड 2021 में आई स्टार्टेड विद द ज्वेलरी, इट इज अ गोल्ड डायमंड स्टडीड ज्वेलरी, एंड जिनका अभी एक्सपोर्ट हम 8 कंट्रीज में करते हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एक्सपोर्ट को लेके, भाई एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, उसमें कोई नई बातें नहीं है या एग्जैगरेटेड चीज़ें नहीं है। एक्चुअल में एक्सपोर्ट क्या है, उनके लिए हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, सही में आज के टाइम में क्या इंडिया एक्सपोर्ट के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, अगर हम कंपैटिबल नहीं है तो कहाँ पे लैकिंग है, कंपैटिबिलिटी कैसे क्रिएट करें, इन सारी बातों को कहीं ना कहीं मैं लोगों तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ। और उन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशंस को डेवलप किया है, जिनकी इन्फॉर्मेशन सर ने दी कि जिनमें 13 लेक्चर्स होते हैं, हर एक लेक्चर 2.5 घंटे का होता है, सुबह 8 से 10:30 बजे का। सो बट ऑब्वियस दिस इज व्हाट माय इंट्रोडक्शन। अमित मुलानी एंड टीम एंड भारत उड़ान मिशन के थ्रू हम ये ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक इन अपॉर्चुनिटीज को पहुंचाया जाए एंड सही मायने में जो इन्फॉर्मेशन है उनको पहुंचाया जाए। आ जाओ बहुत अच्छा चलो कांदा बटाका बेचते हैं, दिस इज नॉट काइंड ऑफ द थिंग। इट इज अबाउट द एक्चुअल डेटा स्टडी, एक्चुअल एनालिसिस ऑफ द थिंग्स एंड व्हाट गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें इंडिया का रोल क्या हो सकता है, उन सारी बातों पर डिस्कशन। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल देना चाहूँगा विद टेक्सटाइल सब्जेक्ट के साथ, कि स्पेसिफिकली जो यान का शो चल रहा है, तो यान का हमारा आज का जो भी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट है वो क्या है, दुनिया भर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और वॉलन टेक्सटाइल को देखिए तो टेक्सटाइल सब्जेक्ट के तौर पे मैंने बताया कि 13 ऑलरेडी चैप्टर्स उनको डिनोट किए गए हैं। तो इन 13 चैप्टर में दुनिया भर में क्या हो रहा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। सो ये जो वैक्यूम है, उन वैक्यूम को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये वैक्यूम को समझना इसलिए ज़रूरी है कि नाउ एज अ यंग एंटरप्रेन्योर वी वांट दैट कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो वैक्यूम हम बट ऑफिस फिलअप कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करके हम इंडस्ट्री को सूरत बेस्ड तैयार करें और यहाँ पे हम ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करें ताकि हम इनको आगे ग्लोबल मार्केट में लेके जाएं। सो एब्सोल्युटली उनकी एक शुरुआत लास्ट ईयर ऑलरेडी हुई थी, इट इज़ मिशन 84, और अभी इनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं ग्लोबल कनेक्ट के साथ। तो डेफिनेटली मेन गोल जो सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है वो यही है कि किस तरह से इंडियन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उनको आगे लिया जाए और अल्टीमेटली खास तौर पे जो सूरत डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया जाए। यू विल बी हैप्पी टू हर्ड दैट कि लास्ट वी कैन से ईयर में फाइनेंशियल के अंदर आप काउंट करें तो टोटल मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा एम्बेसीज के एम्बेसडर्स को हमने यहाँ पे बुलाया था। इट इज़ इन सूरत। बॉस 50 एम्बेसडर मतलब क्या होते हैं आप सोचो, दुनिया के 237 कंट्री, उसमें से 50 एम्बेसडर को हमने बुलाया कि आप यहाँ पे आओ और हमें सुनो हमारे पास क्या है। एंड डेफिनेटली फर्स्ट टाइम इट वॉज हैपन दैट के चैम्बर हैज डिसाइडेड कि हम ऐसा करते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव तो हम सुनते ही है बट हमारा पर्सपेक्टिव क्या है वो भी आप सुनो। एंड लास्ट टाइम हमने ये किया कि बहुत सारे कंट्री के जब एम्बेसडर आए तो उनको हमने हमारा पर्सपेक्टिव बताया कि भाई इंडिया क्या कर सकता है और हम क्या आपको सर्व कर सकते हैं। एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज एवरी एम्बेसडर सेड दैट कि साला इतना तो हमको भी नहीं पता है कि हम एम्बेसडर है लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दोनों कंट्री के बीच में है। तो एब्सोल्युटली देयर आर सेवरल थिंग्स और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एज आई ऑलवेज सेइंग, ये डेटा एनालिसिस है बॉस। तुम जितना प्रॉपर एनालिसिस करोगे उतना प्रॉपर तुम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टेक्सटाइल सब्जेक्ट के साथ जुड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ ऑल एंड सॉल ये बिजनेस एक्चुअली है क्या और इनके जो निटी ग्रिटीज है उनको किस तरह से
मतलब पकड़ा जाए, ताकि हम आने वाले टाइम में इस सब्जेक्ट को लेकर सफल हो पाए, इनके बारे में बात करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आज कर क्या रहे हैं। और ये फिगर्स मैंने यहाँ पे दिखाए पिछले 5 साल के एक्सपोर्ट के। अब देखिए पिछले 3 साल का आप एक्सपोर्ट फिगर छोड़ दीजिए तो ऊपर की फिगर हमें दिखते हैं अराउंड 22 लाख करोड़। ये इंडिया का एक्सपोर्ट था इन 2019-20 और 2021। बट आप देखिए पिछले 3 सालों में हमने इन एक्सपोर्ट के फिगर्स को बढ़ा के 36 लाख करोड़ किया। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि बॉस, दिस इज द ग्रोइंग कंट्री, दिस इज द फास्ट मूविंग कंट्री, एंड नाउ वी आर मूविंग ग्लोबली टुवर्ड्स मैनी कंट्रीज जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। शायद 2 चीजें ऐसी थी जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं या तो नहीं पा रहे थे। एक तो ये कि सिंपल एंड सोबर बात है, जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। जब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि इंडियंस कैन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, जो कि अफोर्डेबल भी है प्राइसेस में और चाइना से क्वालिटी भी मिलती है, तब तक वो आपसे मांगेगा कैसे? क्योंकि दुनिया का एक परसेप्शन बन चुका है कि प्रोडक्ट अगर खरीदनी हो तो चाइना जाओ। बस हमें उठना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा बाहर, उनको दिखाना पड़ेगा कि वी कैन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट्स व्हाट एवर यू वांट। आप क्वालिटी बोलो, हम बना के दे सकते हैं आपको। तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था कि जो मेरे पास है वो मुझे बेचना है, इनको हमने थोड़ा कन्वर्ट किया और हम उस मोड पे आए कि आप बताओ क्या चाहिए, हम बना के दे सकते हैं ना आपको। एंड दिस इज व्हाट द मोड वी वांट व्हेन यू वांट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स। बिकॉज जब आप इस मोड पे आते हैं तो आप ग्लोबलाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिनको जो चाहिए वो अगर आप दे सकते हैं तो वो जल्दी आपके पास अपनी प्रोडक्ट को लेके आएगा, अपनी डिमांड को लेके आएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिए पिछले 3 साल में हमने ये ग्रो किया हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका हमें बेनिफिट मिला, एंड आने वाले टाइम में बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिनका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। मैं उनके ऊपर आगे बात करता हूँ, बट दिस इज व्हाट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया बॉस। एंड ये नीचे जो फिगर मैंने आपको बताया, नीचे लिखा भी है कि ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से है। इसमें कोई भी मैंने हवाला कवाला की तो बात ही नहीं की। अभी गुजरात से अगर हम काउंट करें तो 2-3 लाख करोड़ तो वही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस मनी जो कि इंडियन अकाउंट में फॉरेन करेंसी के तौर पे जमा हुआ है बॉस। ये लीगल मनी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उस पैसों की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि किसी का चीटिंग हुआ है। और आप मार्केट में सुनते हो कि मेरे साथ तो चीटिंग हुआ, ग्लोबल मार्केट ये सब बोलने की बात है, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, अगर यहाँ पे पेमेंटम ये तो वहाँ पे तो कोई पैसा देता ही नहीं है। बॉस हम इतने मीक में जीते हैं कि कभी हमने अपने आप को उसमें से बाहर आने के लिए पुश नहीं किया। What kind of the myth prevails around us? लोगों ने जो बोला वो हमने सही मान लिया और हम उसी बात को समझते हैं। आप आगे फिगर देखिएगा, you will find out that what is the reality of the market and what happening in the world. तो this is what the figures of India's export। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली what is the target of India in upcoming 7 years or 6 years? अब देखो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि अगले 6 सालों के अंदर हम अपने एक्सपोर्ट को 36 लाख करोड़ से बढ़ा के 82 लाख करोड़ पे लेके जाए, और इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट को जिसके अंदर आप सर्विस को जोड़ दो तो उसको तकरीबन 160 लाख करोड़ तक लेके जाए बॉस। दिस इज द विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिनके ऊपर बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। नाउ द मेन पार्ट इज अवर कंपैटिबिलिटी। क्या एक्सपोर्टर के तौर पे हम कंपैटिबल हैं कि जो दुनिया को चाहिए वो हम प्रोवाइड कर पाए, या तो उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इन्वेंट करें, या तो उनको वो प्रोडक्ट के तौर पे उनको सेटिस्फाई कर पाए जो उनको चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात को अगर हम समझ लें कि जो उनको चाहिए अगर उनको डेवलप करके देते हैं ना, तो बस तुम इतना बड़ा मार्केट देख पाओगे जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अपने लिए, जो कि अल्टीमेटली आने वाले टाइम में यहाँ पे बैठे हर कोई व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 के नीचे 2 जोड़ो, इसके नीचे 4 जोड़ो, तुम करोड़पति बनोगे। इट इज अ रियल टाइम बिजनेस बॉस व्हाट आई एम टॉकिंग। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, आज 36 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, अगले 6 सालों में इसको 82 लाख करोड़ तक अगर लेके जाना है तो इसमें कितना वैल्यू एडिशन होता है। अब जस्ट सोचो इसके बारे में। इट इज अ 46 लाख करोड़ का वैल्यू एडिशन। और डोंट फॉरगेट 1 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ होता है। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर इन गुजरात बॉस। लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में गुजरात का 32% हिस्सा था। दिस इज द ओनली स्टेट। एंड डोंट फॉरगेट यू आर इन सूरत। यू आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर लास्ट ईयर इन गुजरात आफ्टर जामनगर। आप उसको छोड़ दो क्योंकि तो पेट्रोलियम है। उसके बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन गुजरात ने किया।
सॉरी सूरत ने किया। दैट्स व्हाट वी आर। और फिर भी हम कितना जानते हैं आप सोचो। एंड व्हाट इज द वैक्यूम इनसाइड। अब आगे फिगर देखो, आपको पता चलेगा ये वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं। आप यहाँ भी फिगर्स को चेक करिए, दुनिया की जो टॉप 13 कंट्रीज हैं उनका आप एक्सपोर्ट देखिए, और उसके नीचे इंडिया का एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। इट इज द कैलेंडर ईयर डेटा 2023 35 लाख करोड़। चाइना का आप एक्सपोर्ट देखो, इट इज 277 लाख करोड़। आपसे तकरीबन 9 गुना एक्सपोर्ट करता है बॉस। और ये पॉपुलेशन कितनी है? 142 करोड़। हम तो इससे भी क्रॉस कर चुके हैं ना ऑलरेडी, 144 करोड़। इतनी पॉपुलेशन में वो अगर इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आपके पास बोलने के लिए बहुत रीजन होंगे, बट उन रीजंस को क्या कभी आपने सर्च करके देखा है कि रियलिटी कितनी है? यू कैन से दैट सर वहां पे तो वेज सस्ता मिलता है, मतलब लोग मुफ्त में काम करते हैं। किसने बोला? कभी आपने वहां पे जाके सर्च किया है? कुछ आपने कभी सर्च किया गूगल पे व्हाट इज द मिनिमम वेज इन चाइना बॉस? नो। हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जीते तो है, लेकिन हमारा ज्यादातर टाइम जो है वो इंस्टाग्राम की रील पे जाते हैं। एंड दोज रील्स जिनका कोई फायदा नहीं मिलता कभी भी, एंड फिर भी हम उसको कंटिन्यू देखे जाते हैं। बॉस कभी आप ये सर्च करो, यू विल फाइंड आउट दैट 50% से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसी है जिनके ऊपर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम्हारा प्राइसिंग भी कम आएगा और उनसे अच्छी क्वालिटी भी तुम बना पाओगे। तुम थोड़ा रिसर्च करके तो देखो। आप सोचो, जिस कंट्री में गूगल नहीं चलता, जिस कंट्री में यूट्यूब नहीं चलता, जिस कंट्री में इंस्टाग्राम नहीं चलता, जहां पे व्हाट्सएप नहीं चलता, जहां पे कुछ नहीं चलता टेक्नोलॉजिकली, वो कंट्री दुनिया का 277 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। और जहां पे सब कुछ चलता है, कोई भी आप कुछ भी खोल लो टेक्नोलॉजी में, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और हमारा 35 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। बस जस्ट फाइंड आउट द वैक्यूम इन बिटवीन। अरे ये छोड़ो, तुम खाली आगे के 13 जो कंट्रीज हैं उनका टोटल एक्सपोर्ट काउंट करो ना। ये 13 कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट आप काउंट करेंगे, ये 750 लाख करोड़ है। 750 लाख करोड़। मैं खाली 13 कंट्री की बात कर रहा हूँ। दुनिया में 237 कंट्री है। आप अगर टोटल काउंट करेंगे ना, ये 2000 लाख करोड़ है। बस ये 2000 लाख करोड़ में हमारा शेयर 35 लाख करोड़, मतलब इट इज जस्ट 2.34%। आप सोचो 97% मार्केट अपने लिए खाली है, जिनको हम सर्व कर सकते हैं। एंड हम कौन से माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, पैसा आ ही नहीं सकता। आप मेरे को बताओ, इसमें से एक भी कंट्री आप ले लो, अगर एक भी कंट्री के साथ आपने कोई इंपोर्ट का काम किया है, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कोई उधारी में देता है आपको कुछ भी? सैंपल भी उधारी देता है? एंड हम लोग हैं जो पूरे गांव को उधारी बांटते रहते हैं। हाँ, कई वांधो ले जाओ, कई वांधो ना, आप जो शांति थी एम हमारा 3 महीने जापे जाइए, ये तब 1 महीना आपको हारा के होता। इतना तो सोचो बॉस कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये सिस्टम है ही नहीं। ये सिस्टम को तुम लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा क्यों रहे हो? इसको नहीं लेके जाना चाहिए। अब अगर सिस्टम समझो, आपका 1 रुपया डूबने का चांस नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि इंडिया का पैसा डूबने का एक ही कारण है, बस 2 चीजें हम लोग बिल्कुल नहीं समझते। पहली बात ये, हमारा लोकल माइंडसेट हम इंटरनेशनल में जाके यूज करते हैं। सामने बंदा पैसा देने के लिए रेडी बोल रहा है कि सर आपका मटेरियल है, मैं पैसा देता हूं। बोले ना ना, हमारा कहीं जरूरत है, शांति थी, आप जो मार्केट चालू जो अल्लाह इसको पढ़ सकते। एंड सेकंड नंबर, the most important part is the documentation. Documentation is all about education, boss. तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन में एक भी सेंटेंस अगर आप ऐसा लिखते हो जिनसे उनको लूपहोल मिलता है ना, तो तुमको फंसा सकते हैं। और आई सिंपली से दैट आज न्यू जनरेशन जो बिजनेस के अंदर आ रही है ना, उनको सबसे इंपॉर्टेंट समझने जैसी बात अगर है ना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है। आप खाली डॉक्यूमेंटेशन प्रीफर कर लो, बाकी तो धंधा ऑटोमेटिकली आपका ग्रो करेगा। इसमें कोई इलॉजिकल बात है ही नहीं। And that's what the vacuum we are seeing over here, जो अल्टीमेटली हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है उसके सामने वर्ल्ड वाइड ग्रोथ को आप जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विद अस। आगे बात करते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द चैप्टर 50 to 63, इट इज कॉल्ड द टेक्सटाइल। अब देखो, मैंने ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इंडिया से लिया हुआ है। अगर हम बात करें 2022-23 की, तो हमारा एक्सपोर्ट था 2,86,000 करोड़।
और अगर हम बात करें 2023-24 की तो ये था 2,69,000 करोड़। वर्ल्ड वाइड रिसेशन की वजह से शायद ये थोड़ा डाउन हुआ है, बट आप सोचो इतना रिसेशन होने के बावजूद भी इंडिया कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अगर ये डाउन का परसेंटेज आपको जो दिख रहा है ना, वो पर्टिकुलर 2% भी नहीं है, जबकि रिसेशन का परसेंटेज 10% से डाउन जा रहा है। एंड फिर भी इंडिया परफॉर्मिंग वेल। व्हाई? बिकॉज वर्ल्ड इज आस्किंग द डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम यू। क्या हम कंपेटिबल है? आज सोचो कि दुनिया की स्प्रिंग दबी हुई है, जहां पे डिमांड नहीं है, फिर भी देयर आर सेवरल कंपनीज जो आज इंडिया से माल लेने के लिए आती है। आप सोचो जब ये स्प्रिंग ओपन होगा तो दुनिया की कई कंपनीज इंडिया के लिए, इंडिया के पास अपने मटेरियल को खरीदने के लिए आएगी। क्या उस वक्त आप कंपेटिबल होगे? द थिंग इज दैट इफ योर कंपेटिबिलिटी इज नॉट दैट ना, बॉस याद रखिएगा, एक बनी बनाई अपॉर्चुनिटी हम आने वाले टाइम में खो देंगे, क्योंकि दुनिया तुम्हारे पास मटेरियल लेने के लिए आने वाली है, बट क्या हम कंपेटिबल है कि हम उनको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए? उनमें क्या कमिटमेंट्स हमारी ओर से होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। बट दिस इज द इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अगर टोटल वॉल्यूम के सामने आप देखें तो इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसमें टेक्सटाइल का परसेंटेज वाइज शेयर अराउंड 6 to 7%। एंड बट ऑब्वियस इट इज वन ऑफ द वेरी यूज इंडस्ट्री टू बी फोकस्ड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स टोटल इंपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल एंड जस्ट चेक द फिगर्स। बस यहाँ पे मैंने इंडिया का एक्सपोर्ट बताया है चैप्टर वाइज, बाजू में मैंने दिखाया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट चैप्टर में वर्ल्ड का इंपोर्ट कितना है, और उसके बाजू में हमारे लिए अनटैप पोटेंशियल मार्केट का परसेंटेज कितना है। आप थोड़ा सा शांति से इस फिगर को देखो एंड यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी विद अस वाज। यू जस्ट चेक द फिगर्स। टॉप नंबर पे आता है चैप्टर नंबर 50, इट इज अ सिल्क। लास्ट ईयर हमारा टोटल एक्सपोर्ट था सिल्क प्रोडक्ट को लेके 964 करोड़ का, और दुनिया का टोटल इंपोर्ट था 13,470 करोड़। अब वैक्यूम देखो 92.84%, जहां पे हमने इसको टच भी नहीं किया। अब नीचे देखो चैप्टर नंबर 51, इट इज अ वूलन प्रोडक्ट। अब उसका एक्सपोर्ट देखो, हमारा खाली 1400 करोड़, उसका इंपोर्ट देखो 89,000 करोड़। क्या हम वूलन प्रोडक्ट से कोई मटेरियल बना नहीं सकते क्या? What's going on? What we are doing right now? क्या हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते कि वुलन प्रोडक्ट में से कितनी प्रोडक्ट फाइनल बनती है? क्या हम उसका इंडस्ट्री शुरुआत बेस नहीं लगा सकते? अगर हम इतना बड़ा टेक्सटाइल काम कर रहे हैं, क्या हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते? Just think about it, boss. What is the vacuum inside? आप जस्ट सोचो। अब नीचे आओ, अलग अलग आप चैप्टर देखो, ये सारे टेक्सटाइल के चैप्टर हैं और हर एक के अंदर आप 90% से ऊपर का वैक्यूम देख रहे हो। मेरा कहने का सीधा मतलब इतना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रोडक्ट में राइट नाउ वर्ल्ड मार्केट क्या है और कौन सी प्रोडक्ट में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट हमको पता ही नहीं है कि थोड़ा प्रोडक्ट को ट्विस्ट करो और दुनिया को जो रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको हम बना के सर्व कर सकते हैं। और ये जब तक रिसर्च नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं होता। और ये कोई भी डेटा हाइपोथेटिकल नहीं है बॉस, इट इज अ एक्चुअल डेटा। जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट है और दुनिया का इंपोर्ट है। द सोर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन, इट इज आईटीसी ट्रेडमार्क। जस्ट ओपन दिस साइट। एक्सपोर्ट का डेटा इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक से मिलता है। बोथ आर द फ्री साइट्स, देयर इज नो चार्ज फॉर इट। बस आपको खाली इतना आना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर इंटीग्रेशन समझ में आता है ना, आई एम गिविंग यू द एश्योरिटी, वूलन में से आप खाली नाइट वेयर की कोई भी प्रोडक्ट तैयार करो, बस दुनिया में टोटल इंपोर्ट उसका अराउंड 600 करोड़ से ऊपर है, और लास्ट ईयर इंडिया का एक्सपोर्ट था 90 लाख। जस्ट थिंक अबाउट। हम ट्रेडिशनल जो कर रहे हैं उन्हीं चीजों को अगर करते जाएंगे ना, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे बॉस। हम सबने पैंडेमिक में देखा कि अब हमको ग्लोबल जाना पड़ेगा, और ग्लोबल जाना पड़ेगा ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो तब होता है जब उसका एनालिसिस किया जाता है। So what Chinese are doing, that's what exactly we have to do. It is called the analysis. If you do proper analysis, you will find out that सर्बिया में इतनी ठंडी पड़ती है बॉस, लोग वूलन के कपड़े आराम से खरीदते हैं और ये उनका पैटर्न है।
अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट समझो, उनकी साइज समझो, और अगर ये मटेरियल आप यहाँ पे बना के वो कपड़े बना सकते हो, बस तुम्हारा मार्केट इजीली स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी यू आर लिविंग इन दैट एरा जहाँ पे लोग चाइना प्लस वन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और जिनको चाइनीज प्रोडक्ट में अब इंटरेस्ट नहीं है। सिंपली और बायर सेइंग दैट बॉस मैं बना सकता था चाइना में, बट मैंने नहीं बनाया बिकॉज आई वांट दैट कि चाइना से नहीं इंपोर्ट करना, और इसलिए मैं आपके पास आया। क्या उस वक्त हम अपनी कंपैटिबिलिटी दिखा सकते हैं? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि कंपैटिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइट नाउ व्हाट एवर वी आर मूविंग फर्दर विद द एक्सपोर्ट मार्केट्स। ये बोलने से नहीं होता, आपको इसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, एनालिसिस करके एक प्रोडक्ट पकड़ लो बॉस, तुम अगले 5 साल में करोड़पति ना हुए तो मैं सिर्फ धंधा छोड़ दूंगा। और कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये फिगर आपको दिख रहा है। अब जस्ट नीचे देखो, ये चैप्टर नंबर 54 फिलामेंट। अब स्टेपल फाइबर देखो, इनका 14-13 हजार करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, और वर्ल्ड वाइड मार्केट तो देखो 4 लाख करोड़ एंड 2.5 लाख करोड़ से ऊपर। I am talking about the 54 filament. It is called the yarn, no? Just think about it. अब स्पेसिफिकली आप देखो, ये फिगर मैंने दी है वर्ल्ड के टोटल इंपोर्ट का। दिस इज द वर्ल्ड टोटल इंपोर्ट अबाउट द 5605 जो मेटालिक यार्न है, 5402 जो सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है, जिनका हमारे यहाँ पे शो है। एंड यू विल फाइंड आउट दैट 2023 में 5605 मेटालिक यार्न का एक्सपोर्ट था 51.99 करोड़, जबकि वर्ल्ड का इंपोर्ट था 1527 करोड़। इसके अंदर भी 96.59% मार्केट हमारे लिए खाली पड़ा है। अब नीचे देखो, इट इज द सिंथेटिक फिलामेंट यार्न। लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट था 6507 करोड़, और वर्ल्ड का इंपोर्ट तो देखो इट इज 1.5 लाख करोड़। कितना मार्केट खाली? 95.67%। हैव वी एनालाइज कि कहां पे क्या हो रहा है, किनकी क्या रिक्वायरमेंट है? हम लोग गोवा जाते हैं, 40-50 हजार रुपया हमारा खर्चा हो जाता है। बस गोवा की जगह पे कभी आप उन कंट्रीज में जाओ जहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शायद उसके अंदर 20-30 हजार और डालना पड़ेगा। 70-80 हजार में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ टाइम में भूल नहीं पाओगे। एंड एक बार जाओ, तुमको पता चलेगा व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू फॉर द फर्दरेंस एंड फ्यूचर मार्केट्स, जहां पे हम ग्लोबल मार्केट को फोकस कर रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी यंग पीपल ओवर हियर, आप अगर टीम बनाते हो ना, तो टीम में आप तय करो कि एवरी मंथ इतना रुपया हम इकट्ठा करके एक साल में इतना बजट बनाएंगे, जहाँ पे हमारी टीम से 1 या 2 बंदे बाहर निकले, जहाँ पे हमारे कंपटीटर है वहाँ पे जाए, इंडस्ट्री विजिट करें और समझे कि हम कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं। बॉस, ये जो एक्सपीरियंस आपको आगे जिस लेवल पे लेके जाएगा ना, वो अद्भुत होगा। आप लिख के लिखो। और ये कोई बड़ी बातें नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये एकदम आसान काम है जो आप इजीली कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे SGCCI भी ऐसी डेलीगेशन विजिट ऑलरेडी करवाती है। मेरे ख्याल से इटमा का विजिट ऑलरेडी आ रहा है, जहाँ पे चाइना के अंदर अक्टूबर में SGCCI की ओर से विजिट है। आप एक बार जाओ, आप देखो क्या चल रहा है। आप रिक्वायरमेंट रखो SGCCI को कि वी वांट टू टॉक विद द यार्न कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको पता चलेगा कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द थिंग्स वी नीड टू नो। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये फिगर्स है बॉस, जो हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं और जो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। बट ऑब्वियसली अगर इसका डिटेल एनालिसिस किया जाए तो खाली 50 to 63 नंबर के चैप्टर में टोटल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1400 कोड्स को दिया है। आप अगर ये 1400 कोड्स को एक्सेल फाइल में डाउनलोड करके रखो, इंडिया का एक्सपोर्ट और वर्ल्ड का इंपोर्ट, बस यू विल फाइंड आउट मोर देन 80% प्रोडक्ट जिनके ऊपर 80% से ऊपर का वैक्यूम है दुनिया भर के अंदर। मोर देन 80% प्रोडक्ट। बस तुम एक भी प्रोडक्ट को पकड़ के आराम से स्टडी करेंगे ना, बनाना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है आज की दुनिया में। आप सब जानते हैं। यू जस्ट नीड टू नो दैट किसके लिए कौन सा मशीन लगता है, कहां से मिलता है, वो मशीन लेके आओ, बनाओ और अपनी प्रोडक्ट को फिनिश करके उन मार्केट के अंदर बेचो जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है। बात खत्म। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली एक्सपोर्ट। Am I clear what I'm saying? एंड सो आज की तारीख में मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, पहले नॉलेज को ग्रैब करें, नॉलेज को प्रॉपर एनालाइज करें,
एंड फिर 6 महीना 8 महीना साल भले लगे, पर एक प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस करके उसके अंदर आगे बढ़े, लिख के ले लो बॉस, यू विल बी अ करोड़पति विद इन अ 5 years. इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अस. मैं बात कर रहा हूँ सूरत की. और डोंट फॉरगेट, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल फोकस आप समझ लो सूरत के ऊपर है. ये मतलब ऑल फैसिलिटीज बीन गिवन सिंस लास्ट 5 to 6 years. अब बुलेट ट्रेन तुम्हारे यहाँ से निकल रहा है, मेट्रो का तुमको ऑलरेडी पूरा नेटवर्क दे दिया है, मेन हाईवे जो निकल रहा है पूरा का पूरा जो वी कैन से फ्रेट कॉरिडोर का जो पार्ट है उसका, अब यहाँ से फ्रेट कॉरिडोर का जो ट्रेन लाइन है वो भी यहाँ से निकल रहा है. अब आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया. आने वाले टाइम में हजीरा पोर्ट को वो डेवलप कर रहे हैं. और हजीरा पोर्ट का डेवलपमेंट भी ऐसे वैसे नहीं हो रहा है बॉस, ये मुंबई के लेवल पे हो रहा है. लिख के ले लो मेरी बात. अगर आज हम सुरतीज में इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया ना, तो 10 साल बाद तुम देखोगे कि यहाँ पे बाकी के स्टेट के लोग आएंगे, धंधा करेंगे, बड़े होंगे और हमको ये दिखाएंगे कि बॉस देखो तुम्हारे सिटी से हमने क्या गेन किया. रिमेंबर माई वर्ड्स. बिकॉज मुंबई के पास अब आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, वहां पे उनके पास जमीन खत्म हो गई है और पोर्ट पूरा का पूरा ऐसी जगह पे है जहां से एक्सपांशन नहीं हो सकता. एंड यू हैव दिस फैसिलिटी बॉस कि तुम जितना चाहो उतना एक्सपांड कर सकते हो. और आपके पास इस तरफ जमीन का लेवल भी ऐसा है कि 270 डिग्री पे आप जितना ग्रो करना चाहो कर सकते हो. योर एब्यूडेंट लैंड एंड सो सूरत इज द फ्यूचर. बट क्या हम कंपैटिबल है इसके लिए कि आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आएगी उनको हम ग्रैब करें? एंड दैट्स द मेन थिंग जो कि मेरा फोकस है. तो ये मैंने बात की फिगर्स के बारे में. कभी इन्हीं सब्जेक्ट को और डिटेल में लेके जाएंगे एंड आई विल शो यू दैट व्हिच आर द एचएस कोर की जिनके अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिनके अंदर आज हमें फोकस करने की जरूरत है. तो डेफिनेटली आई एम रिक्वेस्टिंग दैट कि आने वाले टाइम में सर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक फोकस किया जाए. तो हम उन सेक्शन को लेके आ सकते हैं जहाँ पे ये एनालिसिस में आपको दिखा पाओ एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि कितनी प्रोडक्ट में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. और बट ऑब्वियस ये सारी चीजें क्लास के दौरान भी हम करवाते हैं, जो कि चैम्बर के द्वारा क्लास आयोजन किया जाता है. तो उसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा. मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज लिए हैं जो दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर्स है. 5605 का अगर हम बात करें तो ये मेटालिक यान है और उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, बेल्जियम ये सबसे बड़े इंपोर्टर है, जहाँ पे पर्टिकुलरली विविंग के अंदर इसका यूज किया जाता है. एंड 5402 में तो हम भी एक बड़े इंपोर्टर है ऑलरेडी. बाकी इसके अलावा इजिप्ट, टर्की, वियतनाम, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, दीज आर ऑल द कंट्रीज जो कि सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं. इनका वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है. यू जस्ट गो थ्रू द आईटीसी ट्रेडमार्क एंड यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली द फिगर्स कि वो लोग इंपोर्ट करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो प्रोसेस है उनमें मेनली एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि आज सब्जेक्टिव हम एक्सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं. एक्सपोर्ट का मतलब सीधा एंड सोबर है. सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है. व्हाटएवर द प्रोडक्ट यू आर सिलेक्टिंग फ्रॉम योर इंडस्ट्री, देन आफ्टर उसका मार्केट सिलेक्शन करो. हर कोई प्रोडक्ट हर कोई जगह पे नहीं बिकता. जो प्रोडक्ट जिस मार्केट के लिए अवेलेबल होना चाहिए वो वहीं पे आप बेचो. अगर आप मर्सिडीज बेचने की कोशिश नेपाल में करेंगे यू विल बी फेल्ड. एंड मारुति अल्टो को बेचने की कोशिश यूएस में करेंगे यू विल बी फेल्ड बॉस. दोनों कार ही है, दोनों आदमी ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सही मार्केट आपने चूज नहीं किया बिकॉज उनका परचेज पावर डिफरेंट है एंड सो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उनकी डिफरेंट है. सो जो भी आपने सिलेक्ट किया उनका मार्केट सिलेक्ट करें एंड उसके बाद कंपनी का फॉर्मेशन करें. क्योंकि बट ऑब्वियस है कंपनी फॉर्मेशन तो कभी भी हो जाएगा बॉस. पहले ये तो समझ लो करना क्या है, वरना आज तो क्या है न्यू यूथ का पैटर्न है. पहले ऑफिस खोलो चकाचक, 100 लोगों को बुला के उसका इनोग्रेशन करो एंड फिर टेबल पे बैठ के सोचते हैं चलो अब प्रोडक्ट पकड़ते हैं, क्या करें, है ना. और उसमें 3 महीने चले जाते, कुछ नहीं. वो पापा बोलते भाई तू फैक्ट्री पे आ जा, तेरे से नहीं होगा. एंड सो मुझे लगता है सबसे पहला काम ही एनालिसिस होता है. यू सिलेक्ट द प्रोडक्ट फर्स्ट, यू मूव अहेड विद दैट एंड देन कंपनी फॉर्म करें. कंपनी फॉर्म करने के बाद आपका कॉम्प्लायंस चेक करें. आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन से मार्केट में बिक रही है और वहां पे अगर कोई कॉम्प्लायंस है तो उसको मेनली चेक करें. व्हाट इज अ कॉम्प्लायंस? इट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेशन. आप कोई भी प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेचे तो कॉम्प्लायंस समझना जरूरी है. मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ. मान लो दुनिया की कितनी भी अच्छी काजू कतली आप क्यों ना बनाते हो, बट अगर यूएस में बेचना हो तो यूएस एफडीए चाहिए. एंड यूएस एफडीए कॉल्ड द कॉम्प्लायंस. अगर यूएस एफडीए नहीं है तुम्हारा काजू कतली यूएस में नहीं बिक सकता. तो देखो कि टेक्सटाइल में अगर कोई भी कलर के रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस हो किसी कंट्री में तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और ये कॉम्प्लायंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है. आप सर्टिफिकेशन ले लो, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, एंड बेस्ड ऑन दैट आप कॉम्प्लायंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसमें आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो बट ऑब्वियस मैम ने ऑलरेडी बताया
कि हमारा एक सेंटर भी यहाँ पे चल रहा है, दे विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर द सेम। और इसके अलावा आप मुझे और मेरी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द सेम। आपने मार्केट सिलेक्ट किया, आपने उस मार्केट के अंदर मार्केटिंग चालू किया, बट ऑब्वियस मार्केटिंग के बाद इंक्वायरी जनरेट होगी। जो भी इंक्वायरी जनरेट हुई है उनको आप कोटेशन देना चाहते हैं तो आप सीएचओ को कांटेक्ट करते हैं। मान लो कि मुझे पता चला कि टर्की के अंदर ये गुड्स मैं बेच सकता हूँ, तो मैंने सीएचओ को पूछा कि मुझे 1 कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, तो आप मुझे प्राइसिंग दे दो। आपका 20 फुट कंटेनर का मान लो 2 लाख रुपए प्राइसिंग है, तो आपको सीएचओ ने प्राइसिंग दी, सीएचओ कॉल द कस्टमर हाउस एजेंट। अब ये जो कोटेशन है वो आप अपनी प्राइसिंग में रखो एंड फाइनली अपनी पार्टी के साथ नेगोशिएट करो। अगर डील कंफर्म हो जाता है तो पैसा रिसीव करो एंड फिर ये माल को आगे प्रोक्योर करके मूव करो। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें इसके अंदर आगे कस्टम के बारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि ओके दैट्स फाइन, बट व्हाट अबाउट द कस्टम? माल पहुंचता है सामने वाले कंट्री में, लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट द सेम। इट इज अ वेरी वी कैन से सिंपल एंड सॉबर प्रोसेस जो पूरी दुनिया के अंदर कॉमनली यूज किया जाता है। सबसे पहले आपने सीएचओ को कांटेक्ट किया, सीएचओ ने आपको कोट किया कि भैया आपका इतना खर्चा होगा। आपने कोट के बेस पे आपका जो भी पैसा था वो बाहर से लिया। पैसा लेने के बाद आपने गुड्स का प्रोक्योरमेंट किया जो आपको एक्सपोर्ट करना था, एंड देन आफ्टर आपने गुड्स को सीएचओ को पहुंचाया। नाउ योर सीएचओ माइट बी इन एनी सिटी, लाइक आपको मुंबई से भेजना हो तो बट ऑब्वियस आप मुंबई तक माल पहुंचा दो। अगर आपको सूरत से भेजना हो तो सूरत तक। अगर मानते हो कि 20 फुट कंटेनर में फुल बुक करवाता हो और मुझे अपना फैक्ट्री स्टफिंग करवाना है तो ये भी पॉसिबल है, सीएचओ को बोल दो, ही विल हैंडल एवरीथिंग। आगे बात करते हैं तो उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। मात्र 5 डॉक्यूमेंट है जिनको प्रिपेयर करना होता है। अभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके अपने सीएचओ को दे दो, वो कस्टमर फॉर्मेलिटीज क्लियर करेगा। इट इज कॉल्ड द शिपिंग बिल फाइल। शिपिंग बिल फाइल हो गया, आपका जो गुड्स है वो कस्टम के अंदर गया, कस्टम ने आइडेंटिफाई किया, सब बराबर है तो ये मूव हुआ और कंटेनर फ्रेट स्टेशन में गया। अगर ये लोड हो गया तो आने वाले टाइम में ये पहुंचेगा वेसल के अंदर और ये वेसल पहुंचेगा डिलीवरी डेस्टिनेशन पे। सिंपल, इसमें कोई क्लमसीनेस नहीं है बॉस। अगर तुम्हारा पूरी साइकिल में कोई रिस्क है तो वो क्या है? प्रोडक्ट का डूब जाने का या प्रोडक्ट का खो जाने का, तो उसके ऊपर 110% का इंश्योरेंस होता है। Am I clear what I'm saying? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे कंटेनर के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई साहब बीच में रखना, साइड में मत रखना, वो गिर गया तो वगैरह फलाना दिखना, ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में प्रोसेस इतना सिंपल है कि अपनी ऑफिस में बैठो, सीएचओ विल हैंडल एवरीथिंग। 2-3 एजेंसी और चाहिए जो हम कॉम्प्लायंस के रिगार्डिंग हो, उनको कनेक्ट करो और तुम्हारा काम ऑफिस से हो जाता है। बस एज एन एक्सपोर्टर मेरा एक ही काम है, बायर ढूंढो और पैसा पहले लो। Am I clear? आप खाली इतना करो, बाकी सब स्मूथ है। एवरीथिंग विल गोइंग टू बी हैपन एज पर द प्रोसेस। तो दुनिया में हजारों कंटेनर इधर उधर होते हैं। कब आपने सुना कि कोई कंटेनर ऐसे गिर गया ऊपर से? एवरी कंटेनर इज ब्लॉक। Am I clear? ऐसे नहीं होता, चिंता मत करो। आप उसको छोड़ दो, वो पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचे तो पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का। तुमको क्या टेंशन है? तुम बायर ढूंढो ना अगला। इज दैट क्लियर? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज आई टोल्ड मेनी टाइम कि एक सिंपल प्रोसेस है जो कि परफॉर्म किया जाता है, और ये परफॉर्मेंस में आज इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि आज हमारे पास वो हर एक टेक्नोलॉजिकल वी कैन से सुविधाएं अवेलेबल है जो इन प्रोसेस के लिए, इनको स्मूथ करने के लिए जरूरी है। एंड सो डोंट फॉरगेट, आज आप उस कंट्री में ऑलरेडी जी रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रोसेस के लिए सबसे कंपैटिबल कंट्री माना जाता है। एंड सो देयर आर सेवरल कंपनीज इन द वर्ल्ड जो चाहती है कि हम इंडिया के अंदर अपना बेस बनाएं। बस अगर तुम कंपैटिबल नहीं होते ना तो लोग यहाँ पे आते नहीं। कभी ये सोचते हैं लोग कि चलो पाकिस्तान में जाके कंपनी ओपन करें, बिकॉज यू आर कंपैटिबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस। पर ये हम कब समझेंगे? Am I clear? And that's what we need to understand now. आगे बात करें अगर तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स, खास तौर पे ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात को लेके हम बार बार ये सोचा करते हैं कि प्राइसिंग पॉइंट को हम चाइना के साथ मैच नहीं कर सकते या किसी और कंट्री के साथ, और कभी इसके बेसिक पहलू पे हम जाते नहीं हैं, और उसके ऊपर नहीं जाने की बदौलत हम उनका प्राइसिंग पॉइंट पकड़ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है प्राइसिंग पॉइंट ये स्मार्ट कोटेशन के थ्रू जाता है। एंड व्हाट इज अ स्मार्ट कोटेशन? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मुझे यहाँ पे कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, और इन बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी प्राइसिंग को कहाँ तक प्रेस कर सकता हूँ। एंड सो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू राइट नाउ। व्हेनेवर यू एक्सपोर्ट ना, गवर्नमेंट एक तो आपको सबसे पहले जीएसटी का बेनिफिट देती है। देयर इज नो जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट। मान लो अगर आपका 12% का जीएसटी है
तो 12% तो एक तो सीधा सस्ता हो गया आपके बायर को वहीं पे। मैंने कई बार एक्सपोर्टर को देखा है कि एक्सपोर्ट के बिल में 12% जीएसटी लगा के बेचते हैं। नाउ टेल मी हाउ इट इज कंपेटेबल। बंदा बोलेगा वाह भैया ये तो इतना महंगा है कि इससे तो सस्ता मेरे को पाकिस्तान से पड़ेगा, बट वो इसीलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि आपने जीएसटी लगाया है और आप सिंपल सोच रहे हैं कि भाई जीएसटी में खरीदा है तो जीएसटी में तो बेचना पड़ेगा ना। बट बॉस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी लेती नहीं है, एंड सो या तो आप भर के वापस ले सकते हो या तो आपको भरना ही नहीं है। अब जिसके ऊपर आपको ये बेनिफिट मिलता है उसी के अंदर आपको एक और बेनिफिट दिया जाता है विच इज कॉल्ड द ड्यूटी ड्रॉबैक। नाउ ड्यूटी ड्रॉबैक इट इज अ परसेंटेज वाइज 3 to 4% फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एंड साथ में उन्हीं एक्सपोर्ट पे आपको दिया जाता है रॉटेप जो भी अराउंड 2 to 3% या 4% तक जाता है। बस अगर दोनों को 3% भी काउंट करें ना तो ये 6% होता है। तुम 1 करोड़ का माल भेजो, 6 लाख रुपया गवर्नमेंट तुमको तुम्हारे खाते में देती है एज ए गवर्नमेंट बेनिफिट्स। Have we find out the benefits of this? Was 6%. What is 6%? अगर तुम नेट टू नेट माल बेचो ना तो भी ये 6% तुम्हारी कमाई हो सकती है, तुम्हारा प्रॉफिट हो सकता है। बट हमें नहीं पता होता, इसलिए हम अपनी प्राइसिंग को उस लेवल पे सप्रेस नहीं कर पाते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 3 चीजों के साथ साथ आप ऐड करो अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। नाउ व्हाट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? 27 कंट्री ऐसे जिनके साथ हमारे ऐसे एग्रीमेंट है कि अगर मैं आपको प्रोडक्ट भेजूं तो आपके कंट्री में ड्यूटी 0 होगा, और अगर आप मुझे प्रोडक्ट भेजो तो मेरे कंट्री में आपके लिए ड्यूटी 0 होगा। आप सोचो 27 countries and we are moving very faster with the European Unions, UK, Canada and US. Recently we have started talking with the Africa. Already हमारा कतार के साथ एग्रीमेंट हो चुका है and we are moving further with the GCC different country. Already UAE has been done last year. ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है एंड न्यूजीलैंड के साथ हमारी बात आगे ऑलरेडी चल रही है। वी आर टारगेटिंग बाय 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि हम तकरीबन 80 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आगे बढ़े। एंड दिस इज व्हाट द वी कैन से मेन थिंग टू बी फोकस, जहां पे आप अपने बिजनेस को जब ग्रो करना चाहते हैं किसी कंट्री में तो ड्यूटी का बेनिफिट आपके इंपोर्टर को मिलता है। और मैं कई बार बोलता हूं ये हमें पता नहीं होता है तो हम गोगे, वैसे वो भी गोगे। जिनको तुम कोट कर रहे हो उनको भी नहीं पता है कि इसका बेनिफिट मिलता है। तो कई बार मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है, जब हम पार्टी को बोलते हैं कि सर मैं आपको एक्सपोर्ट करूँ ना तो ड्यूटी फ्री का बेनिफिट मिलता है, यू हैव टू अप्लाई, मतलब यू कैन अप्लाई फॉर द 0% ड्यूटी। बोलता है हो ही नहीं सकता सर, हम तो इतने टाइम से इंपोर्ट करें, कभी तो मैंने सुना ही नहीं है। बोला सर वी हैव द एग्रीमेंट, यू जस्ट चेक इट आउट। बोलता ठीक है आप माल भेजो मैं देखता हूँ। सिंपल सा एक सर्टिफिकेट होता है विच इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बॉस, और ये प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होता है। और ये सर्टिफिकेट के लिए कुछ नहीं है, खाली सीओ निकाल के अपनी जो भी बॉडी है कंसर्न बॉडी उसको दे दो, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के साथ भेजो। सामने वाले कंट्री में उसका अगर 20% ड्यूटी है ना वो 0 हो जाएगा। आप सोचो 1 करोड़ के माल पे जो 20 लाख ड्यूटी पड़ता था उसका ड्यूटी 0 हो गया, वो आपसे क्यों नहीं खरीदेगा? अगर प्रोडक्ट का प्राइसिंग और प्रोडक्ट का कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी मिलता है क्यों नहीं खरीदेगा? टेल मी। एंड वी हैव क्रैक्ड नंबर ऑफ डील्स इन दैट वे, जहां पे आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट दिया हो और बंदे ने इसलिए प्रोडक्ट खरीदा हो क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है। एंड मेनी बायर आई एम नोइंग पर्सनली कि जो बोलते हैं टिल द डेट वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द चाइना। बॉस मुझे नहीं पता था कि इंडिया से इंपोर्ट करने से मुझे ये बेनिफिट मिलता है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट हम पिछले 10 साल से चाइना के साथ काम करिए, बायर के आंसर है, मैं आपको बताता हूँ। हम पिछले 10 साल से चाइना के साथ काम कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूअसली सीइंग दैट कि प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे अप जा रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी धीरे धीरे डाउन जा रही है। लास्ट आपने जो मुझे सैंपल भेजा ये क्वालिटी चाइना से 3 से 4 गुना अच्छी क्वालिटी है, बट क्या हमने कभी उनको दिखाया है प्रोडक्ट? मैं अभी थोड़ी देर के लिए घूमने गया था, बॉस कहां से कहां हम पहुंचे। आप सोचो आज से 10 साल पहले यान के एक्सपो और आज का आप एक्सपो देखो, हाँ ऐसा लगता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सपो है बॉस। अगर हमने इतना ग्रो यहाँ पे किया है ना तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। क्या लोगों को पता ही नहीं है बॉस कि वी आर डूइंग दिस? मैंने अभी एक कंपनी को भी यहाँ पे मैं उनको मिला था, अब मैं नाम भूल गया उनका, बट उन्होंने कुछ धागे के अंदर ही कुछ इनोवेशन किया है। सॉरी
हाँ रूसा इट इज द रूसा यान, कुछ ऐसा नाम था, हाँ रूसा वेव। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा इन्वेंशन किया है और उन्होंने बोला कि दो जो प्रोसेस होती है ना उनको मैंने बाइंड किया और एक प्रोडक्ट को तैयार किया। नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है। आप सोचो कि ऐसे सिंपल इनोवेशन से आप उस फिलामेंट को तैयार कर सकते हैं जिनको आप दुनिया के कई कोनों में पहुंचा सकते हैं जहां पे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इट इज द स्टिचिंग, उन्होंने बताया मुझे कि स्टिचिंग के अंदर यूज होता है, जब सीट कवर स्टिचिंग करते हैं या कोई बैग स्टिच करते हैं, शूज स्टिच करते हैं, तो उसमें तो आप पेशेंसली अगर उसके ऊपर काम करते हैं ना, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि जो वैक्यूम ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको हम फिलअप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली वी हैव द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अब ये तीन के साथ साथ और बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो उसमें एक होता है इंडियन एम्बेसी। कई बार लोग ये बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री में मेरा तो कोई रिलेटिव है ही नहीं तो मैं किसको कांटेक्ट करूं। बॉस, इससे बड़ा तुम्हारा कोई रिलेटिव हो ही नहीं सकता। आपको क्या चाहिए है बोलो ना, ये आपको करके देगा। आपको बाहर का डेटा चाहिए, ये देगा। आपका कंसाइनमेंट फंसा है, ये हेल्प करेगा। उस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलता है, इंफॉर्मेशन चाहिए, ये देगा। अगर आपको विजिट करना है, आपको नहीं पता है मार्केट कौन से विजिट करने चाहिए, आपको ये बताएगा। आप बोलो ना क्या हेल्प चाहिए। आप सबको शायद पता होगा कि लास्ट टाइम जब जयशंकर जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि 2017 में एक मीटिंग हुआ था सारी एम्बेसीज के साथ वर्ल्ड वाइड, एंड यू विल बी हैप्पी टू हर्ड दैट कि आफ्टर यूएस इंडियन एम्बेसीज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, इट इज 140 प्लस, एंड अभी हम इसको ग्रो कर रहे हैं टू 160 प्लस। एंड सो आप सोचो गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रही है, पर क्या इसका बेनिफिट हम उठा रहे हैं? तो जयशंकर जी ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में एक सारे एम्बेसीज का मीटिंग रखा था। ये 3 घंटे मीटिंग चला था, वो उन्होंने कोई एक शब्द भी बोला नहीं था, बट ये पूरी मीटिंग में 3 घंटा वो कंटिन्यूअसली बैठे थे, इसलिए क्योंकि बॉस उनको ये बताना था कि तुम लोगों का क्या महत्व है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, ये आप ध्यान में रखना। क्योंकि तुमको जितनी इंस्ट्रक्शन ये मीटिंग में दी गई है ना, उनको फॉलो करना ही तुम्हारा काम है। बॉस, तब से लेके आज तक आप एक प्रॉपर मेल डाल के देखो, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आया तो मेरे को आप बताना, आई विल गिव यू माय नंबर टू। आप पूछो और जवाब ना मिले, हो ही नहीं सकता। मेरे कई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 250 किलोमीटर दूर से एम्बेसी से कोई बंदा एयरपोर्ट पे आया हो और वहां पे हमारा कंसाइनमेंट छुड़वाया हो। बॉस, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मेरे पर्सनल हैं कि बंदा 250 किलोमीटर दूर से खाली एक माल छुड़वाने के लिए है। माल का इतना वैल्यू भी नहीं था, खाली 4 लाख रुपए का वो लसन था, मतलब गार्लिक। पोलैंड के अंदर हमारा कंसाइनमेंट फंसा था एक डॉक्यूमेंट को लेके, 250 किलोमीटर दूर से वो कार ड्राइव करके आया, बोला सर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये माल आप छोड़ सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। पर द मेन थिंग इज व्हाट, आपको क्या चाहिए ना बॉस, वो आपको बताना पड़ता है, और ये बताने का तरीका अगर नहीं पता होगा ना तो आप मदद नहीं ले पाओगे। Am I clear what I'm saying? अगर कुछ खाने का मन होता है तो माँ को बोलना पड़ता है कि ये खाना है। बंद मुंह से कैसे पता चलता है तुमको ये खाना है? तो ये हमारे लिए वो बॉडीज है जिनको आप पूछो और वो आपको आंसर ना करे, पॉसिबल ही नहीं है। बट क्या हमें पता है कि इसका बेनिफिट कैसे ले? We'll talk in the class in many things, but this is what the very important area to be focused. Professional approach to the bodies will give you immense detail, boss, immense detail. सेकेंड नंबर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक। रिसेंटली आई टोल्ड यू, लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक इंडिया के अंदर से 11,859 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए थे। 11,859। क्या आपको पता है कौन से 11,859? हमको तो खाली रील वाला ही पता है, कांदा और बट्टा का। हाँ, when we will find out those products जो कि इंडिया से इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। बस आप खाली ये डेटा बैंक को ओपन करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डेटा बैंक है और गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से मिलेगा। यू विल बी सिंपली अमेज्ड विद डेटा, कौन सा प्रोडक्ट कौन से साल में कौन से मंथ में कहाँ गया और कितनी क्वांटिटी में, तुमको क्या डेटा चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, एवरीथिंग। क्या हम करते हैं इसका एनालिसिस? मुझे पता है 2012 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ऐसा कोई बैंक नहीं था, बस तुमको गूगल पे जाके ढूंढना पड़ता है क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल डेटा हमें दिया है, तो अगर इसका यूज नहीं करेंगे आज तो कैसे पता चलेगा व्हाट इज द ग्लोबल मार्केट एंड हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आप पिछले खाली 4 साल का ये एनालिसिस करना डेटा का,
मैं आप लिख के ले लो, 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसी है जिनमें हमने पिछले 4 साल में 200% से ऊपर का ग्रोथ लिया है. इट इज 200 more percentage. 2500 प्रोडक्ट. पर आई हैव डन इट. मैं ऐसी कोई भी फिगर नहीं बोल रहा हूँ. आई हैव डन इट पर्सनली. जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी अमेज्ड. आपको फील होगा कि साला एक भी प्रोडक्ट पकड़ लेना बॉस तो हम करोड़पति हो सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रेड चिली सबको पता है ना, रेड चिली. इनका लास्ट ईयर इंडिया का एक्सपोर्ट था 9,900 करोड़. इट इज 9900 करोड़. हाँ, और ये रेड चिली के अंदर हमने टोटल एक्सपोर्ट कितने कंट्रीज को किया था? इट इज 28 कंट्रीज ओनली जिनके अंदर हमारा एक्सपोर्ट था 90% से ज्यादा. आप सोचो दुनिया में 237 कंट्री है. रेड चिली ऐसा प्रोडक्ट है जो वघार में हर जगह यूज होता है. और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो डेफिनेटली यूज होता है. पर क्या हम इन कंट्रीज को जानते हैं जो पर्टिकुलरली अभी भी अंडर पोटेंशियल मार्केट है? नो. और ट्रेडिशनली हमारा मेथड ऐसा हो गया है कि आप माल उन्हीं को बेचो जिनके नाम आपने सुने हैं. किसी को पूछो किधर एक्सपोर्ट करना है, यूके, यूएसए, यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. बाकी तो हमको कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि हमको लगता है बाकी सबको फिकर ही है. 237 कंट्रीज बॉस. वेटिकन सिटी पकड़ो जिनका टोटल पॉपुलेशन 1000 पीपल है. And you are not going to believe that you will find out the Chinese product over there. एक कंट्री को बायस नहीं करता हो, एक सिंगल कंट्री. अगर किसी टापू का पॉपुलेशन 5000 है ना, उधर तुमको चाइनीज प्रोडक्ट दिखेगा. तो व्हाई वी आर बायस इन द कंट्रीज? हमें लिटरली अब ग्लोबलाइज होने की जरूरत है. बिकॉज तुम्हारे पास इतनी सारी प्रोडक्ट है जो आप ग्लोबल बेच सकते हो जिनकी कोई सीमा नहीं है. और एचएस कोड की बात करें तो इंडिया में टोटल 19,000 एचएस कोड है. आप समझो अभी तो 7,500 एचएस कोड ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट तो हमने किया भी नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट थिंक अबाउट ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, व्हाट वी कैन डू. इसके साथ साथ प्री-शिपमेंट एंड पोस्ट-शिपमेंट फाइनेंस का भी हम बात करेंगे. बट डिजिटलाइजेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रोसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 के बाद जो डिजिटलाइजेशन किया है, इट इज जस्ट अमेजिंग. I know that in 2012 हम जब कंसाइनमेंट बेचते थे तो 30 डॉक्यूमेंट फिजिकल देने पड़ते थे. और ये डॉक्यूमेंट देने के बाद भी आपका कंसाइनमेंट 17 से 18 दिन के रोल आउट में सामने वाले कंट्री में निकलता था. आज के दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है. देयर इज नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट फिजिकल, कॉम्प्लायंस के अलावा नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट. एंड उसके सामने आपका रोल आउट टाइम क्या है कंटेनर का? 4 to 5 डेज. कंटेनर आपका पोर्ट पे पहुंचे 4 to 5 डेज में ये रोल आउट होकर सामने वाले कंट्री में निकल जाएगा. दैट्स व्हाट द प्रोसेस राइट नाउ व्हाट हैपनिंग इन इंडिया. पर क्या हमें इसका पता है? अगर जब तक रोड के खड्डे ही देखते रहेंगे ना बॉस, तो इन सबको मिस कर जाएंगे. तो थोड़ा नजर उठाना भी पड़ेगा. गाड़ी चलाते वक्त देखो रोड के खड्डे, वरना जंपर जाएगा. बट आफ्टर दैट टाइम प्लीज फोकस ऑन दैट बॉस. आगे बात करें और बेनिफिट्स के साथ साथ व्हाई इंडिया इज कंपैटिबल फॉर द एक्सपोर्ट. कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि इंडिया कंपैटिबल है क्या एक्सपोर्ट के लिए. मैं बोला भाई साहब कंपैटिबल नहीं होता तो 35 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कैसे करते आप? और दुनिया का 17 नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होते कैसे आप? ये सवाल हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि वी आर कंपैटिबल. बॉस वी आर हाईली कंपैटिबल. व्हाट आर यू सेइंग? कई बार ये भी पूछते हैं इंडियन प्रोडक्ट कोई लेता है? वाह, अगर लेता नहीं होगा तो 35 लाख करोड़ का क्या हमने चूना भेजा यहाँ से? हाँ, मेनी प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में बहुत फेवरेबल कंडीशन में है. लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया व्हाई इंडिया इज कंपैटिबल. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द वेज. मैंने आपको बताया कई लोगों को लगता है कि चाइना के अंदर वेज सस्ता है. बस रियल टाइम कंडीशन ऐसी है कि 25,000 रुपीज इज द मिनिमम वेज. आपको पता है वो कंट्री कहाँ पे पॉजिटिव है? आपके 5 बंदे लगाओ और उसका 1 बंदा लगाओ, एफिशिएंसी सेम होता है. प्रॉब्लम यहाँ पे जब आप अपनी फैक्ट्री के अंदर मोबाइल को नॉट अलाउड कर देंगे ना, तब ये एफिशिएंसी सेम मिलेगा. जब आप अपने वैकेंसी जो भी वैकेंसी कारीगर हैं या तो जो अपने एम्प्लॉयज हैं, उनको जब आप एम्प्लॉय की जगह पे एक प्रॉपर पार्टनर्स या तो ग्रोथ पार्टनर्स का दर्जा देंगे ना, तब ये पॉसिबल होगा. कीप माई वर्ड्स विथ यू. अगर आप उसको फैमिली नहीं समझते हैं ना, तो वो अपनी मनमानी करेंगे. आप उसको फैमिली समझ के काम करो और देखो ये आपकी ग्रोथ में कितना हिस्सा लेते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज. वी कैन से आवर माइंडसेट मेनली. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की तारीख में चाइना में ऑलरेडी देयर आर सेवरल आंदोलन जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, जहाँ पे
ये लोग मिनिमम सैलरी 75,000 करने के लिए बोल रहे हैं। सब कुछ सामने नहीं आता है, क्यों? क्योंकि चाइनीज न्यूज कभी बाहर आती ही नहीं है, ये इतने कोडन है। और आपके यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी हो तो न्यूयॉर्क में पता होता है कि फैक्ट्री में आग लगी, क्योंकि अपना सोशल मीडिया एंड मीडिया बहुत पावरफुल ना, कहीं पर राफ्टी नाखवानो कहीं पर जगह पर, बट चाइनीज न्यूज आपको नहीं मिलेंगे। बट आई हैव पर्सनली नोइंग अबाउट दैट बिकॉज वी हैव द वी कैन से क्लाइंट इन चाइना और वी कैन से वी हैव द कनेक्शन विद चाइना। पीपल आर सेइंग दैट वी नीड 75,000 रुपीज मिनिमम। व्हाई? बिकॉज बॉस तुम्हारे मुंबई जैसे चाइना में 23 सिटी है, मुंबई में पॉसिबल है 25,000 में रहना, वहां पे कैसे पॉसिबल होगा? टेल मी। आप सोचो जब ये 75,000 रुपीज होगा ना तो तुम्हारा कंपेटेबिलिटी वो 5 कारीगर के बराबर तो अभी आ जाता है, और ये करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ऑप्शन नहीं है। एंड सो राइट नाउ चाइना का सबसे बड़ा टेंशन यही है, क्योंकि पर्टिकुलर मैनर में लोगों का जैसे जैसे वेलनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। बट ऑब्वियस ये सैलरी बढ़ेगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर एंट्री कर पाएंगे। बॉस दिस इज द राइट काइंड सिचुएशन जहाँ पे आज दुनिया दो तरीके के फंडामेंटल्स के ऊपर सोच रही है। एक चाइना प्लस वन का पॉलिसी, हमको चाइना से खरीदना नहीं है, एंड दूसरे नंबर पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट बस चाइना का ऑप्शन ढूंढ के रखो, क्योंकि कल कभी ऐसा हुआ कि चाइना बंद हो गया तो तुम किधर से लाओगे? ये पैंडेमिक में सबने ये फेस किया। एंड सो आज इंडिया इज ओनली कंपैटिबल कंट्री इन फ्रंट ऑफ चाइना जो ये कर सकता है। बट क्या उनके लिए हम इंडिविजुअली कंपैटिबल हैं? दैट्स अगेन द क्वेश्चन। एम आई क्लियर? एंड सो कंपैटिबिलिटी को जनरेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 60 प्लस कंट्री के साथ हमारे MOU एंड FTA है, और 27 कंट्री के साथ हमारे FTA है। आप कभी चेक करो, अगर एक प्रोडक्ट भी पकड़ो ना बॉस जिनके अंदर सामने वाले कंट्री में ड्यूटी जीरो होता है, तुम खाली उस प्रोडक्ट पे करोड़पति बन जाओ। आई एम टॉकिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट माइट बी अपन जहां से इंपोर्ट करें वहां पे ड्यूटी जीरो नहीं हो रहा है। आगे बात करें तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यू जस्ट यूज द गवर्नमेंट बेनिफिट प्रॉपर्ली एंड गिव द कोटेशन टू देम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट नाउ वी आर डूइंग अ गुड, बिकॉज पैंडेमिक के पहले हम इतना नहीं करते थे, बट पैंडेमिक के बाद हमने ये बहुत किया। एंड आई हैव सीन दैट मेनी कंपनीज जिन्होंने इनोवेशन करके नई नई प्रोडक्ट बनाई है, बट ये हमारा फ्यूचर है। डेफिनेटली वी आर डूइंग अ वेरी गुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट अभी भी रिगरसली हमें इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएसए वॉर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खेला है। पूरी मतलब प्रार्थना करना कि ट्रम्प भैया आ जाए। अगर ये आ गए ना तो अगले 4 साल तुम्हारे हाथ में चांदी सोना है, पकड़ के चलो। बिकॉज चाइना और ट्रम्प ये दोनों मतलब आप समझो उत्तर दक्षिण है ना? और अगर वो आएंगे ना तो बट ऑब्वियस इन दैट केस इंडिया विल गेट बिगेस्ट बेनिफिट एवर। एंड बट ऑब्वियस इन दैट केस कोविड सिचुएशन ने बहुत सारे पैरामीटर चेंज किए, लोगों की थिंकिंग को चेंज किया, और लोगों को ये समझाया कि भैया ये कुछ भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। एंड दे आर लिटरली डिक्टेटर, नो? चाइना इज द काइंड ऑफ डिक्टेटर कंट्री। चाइनीज एक्सपोर्टर्स आर टू गुड, बट चाइना एज अ कंट्री ये बहुत खतरनाक है। और ये बात आज यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज को बहुत क्लियर है। एंड सो वो अपने इंपोर्टर को ये बोल रहे हैं कि भैया पॉसिबल हो इतना आप चाइना से डिपेंडेंसी को खत्म करो और कोई कंट्री की तरफ मूव करो, क्योंकि अब ये हमारी जरूरत है। एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ राइट नाउ इंडिया हैज परफेक्ट टाइम कि हम इसको प्रूव करें कि जो रिक्वायरमेंट है उसको हम खत्म करके हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, और हमारी दुनिया भर की प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट दिया जाए। एंड डेफिनेटली डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आज सूरत के अंदर ही इतना आपके आजू बाजू में डेवलपमेंट चल रहा है कि अगर इनका पूरा फायदा लिया जाए तो आने वाले टाइम में यू विल बी अ किंग मेकर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। एंड बट ऑब्वियस हाउ टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस में इसको थोड़ा स्किप करता हूं बिकॉज ऑफ द टाइम। वी हैव द टू काइंड ऑफ द एक्सपोर्ट, द वन इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चर एंड सेकंड वन इज द मर्चेंडाइज। कभी और टाइम लेंगे, बट दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट वेयर टू फोकस फॉर द सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस। मैं जो बार बार ये बोलता हूँ कंपैटिबिलिटी, क्या होता है कंपैटिबिलिटी? We need to raise our compatibility with the 5 parameters. The first and very formal is called smart quotation. जब तक आप अपना प्राइसिंग पॉइंट कंपाउंड करके या तो ऑप्टिमाइज करके नहीं देंगे, तब तक आप स्मार्ट कोटेशन पे नहीं आ रहे। एंड ये सिंपल सी बात है, स्मार्ट कोटेशन इंक्लूड्स 4 थिंग्स। इट इज योर GST,
it is your roadmap, it is your duty drawback, and it is your fitted agreements. Just go through it and you will find out the smart quotation over there. If you do it, definitely your buyer will purchase from you. बात नंबर 2, it is called the presentation of the product. जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा कैसे? आप कभी बैठ के सोचो, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट दिखता है जो आपके मार्केट है? अगर वो दिख नहीं रहा है ना तो वो बिकेगा नहीं. और दिखाएगी कैसे? उनके बहुत तरीके हैं. आप सोशल मीडिया यूज करो, आप पर्टिकुलरली उस कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी को यूज करो, आप पर्टिकुलरली उस कंट्री की विजिट करो जहाँ पे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट के होते हैं, एंड या तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करो. इवन गवर्नमेंट गिविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द कंसेशनल we can say benefits in participating different trade fairs like MDA and MAI. These are the two schemes. अब अगर कोई कंट्री के अंदर किसी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 70 to 80% का तो आपको रिइंबर्समेंट देती है बॉस. अगर तुम्हारा खर्चा 2.5 लाख या 3 लाख है, गवर्नमेंट विल गिव यू 2 to 2.5 लाख रुपीस डिपेंड. वाई? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आप बाहर निकलो, अपनी प्रोडक्ट को दिखाओ, क्योंकि जब वो दिखेगा तभी तो बिकेगा ना. So there are several ways to represent the product. Work on that and find out. एक मार्केट भी टारगेट करते हो तो पूरे मार्केट को पता चल जाना चाहिए कि तुम ये बेच रहे हो. जिस दिन ये होगा ना तुम पीछे नहीं रहोगे. लिख के ले लो. बात नंबर 3 आती है लीगल डॉक्यूमेंटेशन. एज आई टोल्ड यू, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. कई बार हम लोग ये माइंडसेट से काम करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट जब बनता है तो वी थिंक चाले आवे जवा दो ने थोड़ू तो बदले चाले जाए. कैसे हो? नाउ मैं तो आपको आगे का कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता हूँ. आपने जो बोला ना चलेगा, वो तो सब जगह पे चलता ही, लोकल में तो हम करते ही है ना. ये डॉक्यूमेंट गया इंपोर्टर के कंट्री में. नाउ व्हाट इज ए इंपोर्टर्स कंट्री? एन इंपोर्टर कंट्री मींस दैट कस्टम हाउस. अब उसके कस्टम हाउस में तुम्हारा एक भी डिजिट एचएस कोड का इधर उधर हुआ, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा भी गलती हुआ, अगर तुम्हारी प्रोडक्ट और जो माल तुमने भेजा है उसके डिस्क्रिप्शन में कोई भी गलती हुआ, आपके नोटेशन में कोई गलती हुआ ना, बॉस वो इंपोर्टर को बुलाएगा और बोलेगा भैया इसमें गलती है, मेरे को सही डॉक्यूमेंट दो. एंड आपको पता है उसके बाद क्या होता है? योर पार्टी सिंपली थिंकिंग दैट अरे बॉस तुमको डॉक्यूमेंट भी बताना नहीं आता है क्या? हाँ, तुम मेरे को एक्सपोर्ट कर रहे. और इसलिए वो चलेगा, सब चलता है, जाने दो, ये एक्सपोर्ट में नहीं चलता बॉस. That's what the compatibility जो हमको रेज करने की जरूरत है. कई लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत आता है कि डॉक्यूमेंट आपका परफेक्ट नहीं है ना सर, मेरा माल 4-5 दिन ऐसे ही पड़ा रहे. अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्लियर होता ना तो पहले दिन माल उठा के मैं मार्केट में फेंक देता. अभी वो बायर में तो 3-4 बायर तो छूट भी गए, बोला सर माल लेट आ रहा है, आई विल नॉट गोइंग टू बाय. व्हाट टू डू विद दैट? वी हैव टू डील विद दोस थिंग्स बॉस. गलत कमिटमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. The fourth thing is about the professional approach. कई बार लोग बोलते हैं बायर का डेटा तो मेरे पास बहुत है, मैंने 500 रुपये में सीडी खरीदा है ना. मेरे को वो समझ में नहीं आता कि साला ये सीडी बेचता कौन है. तो अगर 500 रुपये में 1000 बायर का डेटा तुमको बेचे तो वो पागल है क्या? उसके पास बायर का डेटा हो तो खुद धंधा चालू ना करे, तुमको सीडी बेच रहे हैं. तो मान लो कि सीडी बेच के डेटा लिया भी है, बोलते सर कांटेक्ट करते लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता. आप सिंपल सी बात सोचो, आप कोई दुकान लेके बैठे हो, कोई बंदा आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है, डेफिनेटली इन दैट केस वो आके बोले कि ये मेरा प्रोडक्ट है, देख लो, अच्छा लगे तो ले लो. आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? हैं? दिस इज व्हाट हैपनिंग विद अस. वी आर सेंडिंग देम अ मेल, सर वी हैव दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज माय वेबसाइट, प्लीज चेक इट आउट, अगर आपको कुछ लगे तो ले लो. बॉस ये बायर है. बायर मतलब क्या होता है? उसको अपनी नीड के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. आप सब याद करो, जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो सामने वाला बंदा 50 जोड़ी कपड़े खोल के दिखाता है. आपने क्लियर बोला होता है कि मेरे को ब्लैक कलर का पैंट चाहिए, फिर भी वो ब्लू भी निकालता है और ग्रे भी निकालता है. क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि बॉस अगर तुम्हारे पास चॉइस होगा ना, हो सकता है तुम्हारा दिमाग घूमे और तुम कुछ और ले लो. और जस्ट थिंक अबाउट इट, एक सिंपल तुमको पैंट खरीदना है और वो बंदा तुम्हारे लिए कितनी चीजें बताता है. अगर ये सिंपल पैंट के अंदर इतनी चीजों को प्रेजेंट करता हो तो भैया आप तो 2-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या तो उसके ऊपर का धंधा करने वाले हो, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़. हाउ कैन यू सेल द प्रोडक्ट?
if you are sending the mails to someone खाली boss, you have to cordon the buyer. हर तरफ से तुम उसको घेरो, तुमको पता है कि ये खरीदता है तो वो तुमसे क्यों ना खरीदे, और उनके तरीके जो है उनको समझना बहुत जरूरी है. अगर आप इन तरीकों को जानते हो ना तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो तुमसे खरीदेगा, ये लिख के लेगा. और आई हैव सीन मेनी काइंड ऑफ द मेल्स जो कि हम लोग भेजते हैं, एक मेल में एक ढंग का डिटेल भी नहीं होता है, मेल पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे मेल हम भेजते हैं. और जब तक वो प्रेजेंटेशन मोड में नहीं आएगा ना, बायर तुमसे नहीं खरीदेगा. एंड वो चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है. और इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ. हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट. गो टू द अलीबाबा, सर्च योर प्रोडक्ट एंड चेक हाउ चाइनीज showing their product on Alibaba. Just think about it. तो तुम ऊपर से नीचे तक जाओगे ना, तुमको फील हो जाएगा ऐसे कि यू खरीद सकते हैं यू. इसके लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इतना ऑथेंटिकेट प्रेजेंटेशन हमको दिखता है. When we do this kind of the presentation ना, people will going to buy from it. लिख के ले. And the last but not least, it is called the commitment to be followed. The most important part is the commitment. There are the 3 commitments जो particularly हमें फॉलो करनी चाहिए. सबसे पहला जो बोला है वही माल उसको मिलना चाहिए. एक तो हमारा ये सबसे बड़ा लोचा है. बात नंबर 2, जिस टाइम पे बोला है उस टाइम पे पहुंचना चाहिए, ये भी दूसरा सबसे बड़ा लोचा है. एंड बात नंबर 3, जो तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही बोलो, एग्जैगरेटेड बातें मत करो. होता हमारा 5000 बॉबिन का काम और कोई बोले 10,000 पीस हो जाएगा, हाँ कही जाएंगे, बद्दू कही जाएगा, बोलो. एंड समटाइम इट हैपन. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कनाडा का बायर बोल रहा है, सर मेरे को आपसे माल चाहिए. बोला ठीक है. बोला कितने टाइम में भेजोगे. बोला सर मेरा सीएचए बोल रहा 35 डेज में मिलेगा. बायर बोलता है मेरे को तो 20 दिन में चाहिए बॉस, दे दो ना. हाँ मिल जाएगा. अब कौन सा शिपिंग लाइन आपके पापा का है जो 20 दिन में यहाँ से कनाडा भेजता है, मेरे को बताओ. Not a single shipping line, huh? And buyer will identify क्यों गलत कमिटमेंट कर रहे हो भाई, निकलो नहीं करना मेरे को काम. सो ऑर्डर लेने के लिए कुछ भी बोल दो, ये इन बातों से मैं बाहर निकलना पड़ेगा. और इसलिए मैं बोलता हूँ ये 3 कमिटमेंट्स आप फॉलो करो. दोस्त आप सोचो खाली, जापान के अंदर ये बोला जाता है कि ट्रेन जब स्टेशन पे आती है ना तो अनाउंसमेंट होता है कि अपनी घड़ी जो है टाइम पे कर लो, ट्रेन अपने टाइम पे, तुम्हारा घड़ी डिले हो सकता है. अब उस कंट्री के बायर को हम क्या वायदे करते हैं. बोला सर वी नीड अ कोटेशन. सर विल गिव इन द 2 hours ओनली. गिव मी 2 hours. बंदा खड़ा है किसी की शादी में, उसको भी पता है रात को 10 बजे तक मैं फ्री होने वाला हूँ नहीं. मॉर्निंग में जाके 12 बजे कोटेशन भेजा, सामने वाला पार्टी कोई आंसर नहीं करता. सर हेलो सर यू दैट सर. वो तंबूरा वापस आएगा, तूने 2 hours बोला और ये 12 hours हुए. जहाँ पे ट्रेन 1 मिनट लेट नहीं होता उसको तुम 12 hours से मतलब बोल रहे हो मैं कोटेशन भेजता हूँ. बॉस तुमसे दूसरी बार कभी धंधा नहीं करेगा. और ये पूरी दुनिया के कई कंट्रीज की सिचुएशन है जहाँ पे 1-1 मिनट का महत्व है. एंड सो रॉन्ग कमिटमेंट्स आर नॉट अलाउड. नहीं कर सकते तो मना कर दो, कर सकते हो तो सही बोलो, क्योंकि जितना आप सही बोलोगे ना उतना वो आपकी झोली में गिरेगा. खाली धंधा करने के लिए कुछ भी हाँ मत बोला करो. दैट्स नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Am I clear what I'm saying? And the most important part is the quality. जो तुम बना सकते हो उनके लिए हाँ बोलो. जो तुम्हारी कैपेसिटी उनके लिए हाँ बोलो. एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ. वन बायर फ्रॉम रशिया जो कि हमारे पास मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट में ऑलरेडी काम करता है, इनको इंडिया से टी शर्ट चाहिए था. तो बट ऑब्वियस वी हैव गिवन द कॉन्टेक्ट टू देम. अब उन्होंने यहाँ पे टी शर्ट का ऑर्डर दिया जो वियतनाम से ऑलरेडी लेता था. ऑर्डर दिया अराउंड 20,000 टी शर्ट का. अब ये बंदा बोल रहा है हाँ सर हो जाएगा. ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर है दिल्ली से. ये 20,000 पीस का ऑर्डर लिया और बनाते 5-6 हज़ार पीस पे पहुंचा और फिर उसको लगा ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता. एंड फिर बायर को बोलता है सर आई एम सो सॉरी बट ये मेरे से नहीं होगा. एंड पेमेंट 100% एडवांस. अब आप मेरे को बताओ दूसरी बार वो बायर इंडियंस के ऊपर भरोसा करेगा? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. और इसलिए मेरा एक सेंटेंस हमेशा होता है, बॉस अगर तुम कर सकते हो तो ही बिजनेस में आना, अगर इसको बिगाड़ने वाले हो ना तो मत आना, क्योंकि बॉस ये तुम्हारा नाम नहीं बिगाड़ता, ये इंडिया का नाम बिगाड़ता.
एंड इंडिया एज अ वॉल एज अ कंट्री। और जब हमारा इंप्रेशन खराब होता है ना तो ये सबको दिक्कत होती है। Am I clear? And so these are the 5 things। अगर इन 5 चीजों को हम फोकस करें तो मुझे लगता है कि इंपोर्टर आपकी झोली में ऑटोमेटिकली गिरेगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ हु कैन स्टार्ट दिस बिजनेस? एनीवन कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। उसके लिए खाली आपका पैन कार्ड चाहिए भाई, कोई जरूरत नहीं है कितने पढ़े लिखे हो। सऊजी काका और गोविंद काका कितना पढ़े हैं? सालाना टर्नओवर देखो 10,000 करोड़ से ऊपर का। सिंपल बोलते हैं भाई साहब, नहीं समझ में आता तो एक बंदा रखते हैं 20,000 महीने लेता है, जाके बात करते हैं, वो मेरे को समझाते हैं वो क्या बोल रहे हैं, मैं उसको बोलता हूँ, उसको ये बोलता है। देखो अभी करना ही है धंधा तो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है ना। बट ऑब्वियसली वी हैव द वेज टू मूव अहेड, नो, बट वी हैव टू सेट अवर माइंडसेट फर्स्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। This is my YouTube channel, boss, Bharat Udan Mission and Amit Mulani and team. I am requesting everyone to go through this channel. मैं ट्राई करता हूँ कि दुनिया के अलग अलग कोने में जाके वहाँ पे कुछ रियल टाइम वीडियोस ले पाऊँ। मैंने यहाँ पे जापान विजिट किया था अबाउट जेम्स एंड ज्वेलरी शो, गल्फ फूड दुबई विजिट किया था, हांगकॉन्ग, रिसेंटली वी हैव विजिटेड सिंगापुर। उनके कुछ वीडियोस जो भी है अब आने वाले टाइम में अपलोड करेंगे, IIGS और वगैरह। तो मैं डिफरेंट शोज विजिट करके वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, रियल टाइम एक्सपोर्टर्स, उनके इंटरव्यूज लेता हूँ ताकि पता चले कि इनका माइंडसेट क्या है। आई एम ट्राइंग बेस्ट कि मैं आपको वो रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास लेके आऊँ कि ताकि आप भी समझ पाए कि आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। अगर आप उनके माइंडसेट को सोचेंगे जो कि रियल टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप पर्टिकुलर मैनर में उन फंडामेंटल्स को क्लियर कर पाएंगे जो आपकी प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। यस, सो प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर चैनल। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे इंडियन इंटरनेशनल शो एंड इंटरनेशनल शो का डिटेल मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। Thank you so much. We have the course in specifically Southern Gujarat Chamber of Commerce Industry. You can find out the number over here. This is Mr. Mayur's number, please. So you can connect him for the more information about the course. Southern Gujarat Chamber of Commerce के साथ जो हमारा कोर्स हो रहा है, उनका 17th को हमारा फ्री एक सेमिनार है शाम को 6 बजे से 8 बजे। तो आई एम इनवाइटिंग एवरीवन। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, तो विल डेफिनेटली कनेक्ट यू फॉर द सेम। बट आप अभी के लिए ये नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो। 17th को रात को 6 से 8 बजे ये 13 दिन के लेक्चर्स होते हैं, 2.5 घंटे के, मॉर्निंग 8 to 10:30। और ये टोटल 35 आवर्स के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें अभी आपको 1 घंटे में दिखाई उसको एक्सटेंड करके हम 35 घंटे में लेके जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम सिंस लास्ट 12 years। और यही बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, जैसे सर ने बताया, मेरे जैसे 1 लाख अमित मुलानी आ जाए ना तो भी बॉस मार्केट इतना बड़ा है कि हम उसको खत्म नहीं कर पाएंगे रिक्वायरमेंट। और मैं अगर चाहूँ भी तो 1 लाख अमित मुलानी मेरी पूरी लाइफ में नहीं बना सकता। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैनी अमित मुलानी कैन कम इनटू द इंटरनेशनल मार्केट and they can identify the opportunities in world. Thank you so much for listening patiently. I will put time together and I think it will help you. And this is the QR code everyone. आप इस QR कोड को खास तौर पे WhatsApp ओपन करके जहाँ पे ऊपर कैमरे का बटन है ना उसको प्रेस करके आप ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। You will find out different information over here जो कि particularly एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके है। It is not about the class only, but जितनी भी न्यूज़ और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज कहीं पे भी हमको दिखती है तो हम इस ग्रुप के अंदर फ्लॉट करते हैं, है ना। सो प्लीज गो थ्रू दिस। सो इट इज नॉट अबाउट खाली SGCC है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि हमारे वीडियोस या तो हमारे कोई भी वी कैन से शॉर्ट इंस्टा वीडियो होते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज वगैरह है। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। गॉड ब्लेस। થેન્ક યુ અમિતભાઈ જ્યારે બોલતા હોય તો એવું લાગે કે હજી સતત બોલતા જ રહે, અને આપણે જો આમાંથી કોઈ GPSC UPSCની કંઈ ખબર હોય તો ડૉક્ટર વિકાસ દિવ્યકીર્તિ કરીને ટીચર છે, એ જેટલું મસ્ત અને એને સાંભળવાની જેટલી મજા આવે ને એટલી જ સાહેબ તમને સાંભળવાની મજા આવે। સતત આપણે એવું લાગે કે ખાલી બોલતા રહ્યો અને જાણવા મળે। આપણી પ્રોડક્ટને વેચવી એના કરતાં જરૂરિયાત કઈ વસ્તુની છે એ બનાવીને વેચવી એ ખૂબ અગત્યનું છે। સાહેબે આ વાત કરી અને એક કહીએ કાંઈ કે આપણે મોટિવેશનલ સ્પીકરને સાંભળીએ કરોડપતિ બનવા માટે, અને સાહેબ અહીંયા બેઠા બેઠા આપણને કહે કે આ પ્રોડક્ટનું આ ડેટા એનાલિસિસ પ્રમાણે કામ કરો તો ઓટોમેટિક આપણે 2-5 વર્ષમાં કરોડપતિ બની શકીએ। થેન્ક યુ સાહેબ। હવે આપણે ક્વેશ્ચન અને આન્સરનો સેશન ચાલુ કરીએ। કોઈ પણ મિત્રના મગજમાં આ રિગાર્ડિંગ પ્રશ્ન હોય તો એ ભાઈ આપણે માઇક આપજો અને 1 by 1 હાથ ઊંચો કરી અને આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરનું કરશું।
ઘણા બધાએ તો મને પહેલા સાંભળેલો છે ઓલરેડી, ઘણા બધાએ તો આમાંથી ડિટેલમાં સાંભળેલો છે. એટલે હા, એવું બની શકે કે બધા સરના સ્ટુડન્ટ છે એટલે આપણને તો ખબર જ છે કે સાહેબ પાસે હવે પેલું કરી કે તો પણ કોઈ હોય તો આપણે ફટાફટ Yes, કરીએ. anyone, please. Any question you want to ask? Yes, please. સાહેબ આપણે માનો કે કોઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે કે આપણે અહીંયા લોકલ માર્કેટમાં સોર્સિંગ કરવું હોય તો પછી આપણે મતલબ જ્યારે સ્ટાર્ટ કરો ફર્સ્ટ એની શરૂઆત હોય તો કોઈ આપણને રિસ્પોન્સ આપે પછી ડાયરેક્ટ? 100% જો આ વાત જે એમણે કીધી છે ને એના પર હું તમને એક ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન આપું. See, many time what we are thinking and what is the situation of the market, ये दोनों चीज अलग अलग होती है. आज का टाइम उन लोगों का नहीं है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, आज का टाइम उन लोगों का है जो प्रोडक्ट सेल करते हैं. कीप माय वर्ड्स विथ यू. आज के टाइम में अगर आपको बेचना नहीं आता ना बॉस, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है मार्केट में. बना तो कोई भी लेता है. बनाने में क्या है, मशीन डालो, इधर से धागा डालो, उधर से बूटा निकलता है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. पर वो बूटा किधर बेचना है, अगर तुमको वो नहीं पता है ना तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे. और इसीलिए whenever you want to connect someone, please keep in your mind, तुम उस कंपनी को वो इंफॉर्मेशन दो जो एक्सक्लूसिव है, जो उनको नहीं पता है. तुम उन चीजों पे बात मत करो जो उनको ऑलरेडी पता है. लाइक आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल इन डिटेल. मान लो कि अगर कोई कंपनी बॉल पॉइंट पेन बनाती है और मुझे उस कंपनी की प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो मैं जाके उनको वो प्रेजेंटेशन दूंगा जहाँ पे वो सारी डिटेल्स हैं जो अल्टीमेटली उनको नहीं पता है, बिकॉज दे आर डूइंग द लोकल बिजनेस. आपको सुनने के बाद में उसको लगना चाहिए भैया भयंकर मार्केट है. आई एम 100% मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर बॉस, 100%. मैं एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ, बट टिल द डेट कभी भी मेरा कोई भी मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हुआ फ्रॉम माई साइड. उन्होंने बैक स्टेपिंग किया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ वो अलग बात है, बट मेरी साइड से कभी नहीं. बिकॉज पहली मीटिंग में ही उनके साथ हमारा वो डिस्कशन होता है जहाँ पे उनको सिंपल समझ में आता है कि भाई यही कर पाएंगे, अगर ये नहीं ना तो कोई नहीं कर पाएगा. जिस दिन ये कॉन्फिडेंस तुम बिल्ड करके प्रेजेंट करोगे ना बॉस, तुमको कोई मना नहीं कर सकता. लिख के ले लो. मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रहा हूँ. आई हैव डन द मीटिंग विद द बाम्बूज ऑल्सो. बाम्बू एवरीवन नो, यस और नो. बाम्बू ने हमें इसीलिए बुलाया था कि वी वांट टू एक्सपोर्ट अवर प्रोडक्ट्स. आई शार्पली नोइंग इन 2018 वी हैव द मीटिंग, बट कुछ फंडामेंटल जगह पे हमारे मतलब कोई वी कैन से सोच विचार बैठे नहीं. बाकी उन्होंने पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद पहला सवाल ये पूछा था, अमित भाई बताओ कैसे आगे बढ़े. तो प्लीज सोच को बदले, पहले सेलिंग एक्सपर्ट बने. इफ यू आर द सेलिंग एक्सपर्ट ना, आज आपका टाइम है. प्लीज एनीवन एल्स. यस सर. सर एक जैसे अपन ने HSM कोड देखा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द माइक एक्चुअली 5402, उसमें जैसे देखा था कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है ऑल ओवर इंपोर्ट हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंपोर्ट हो रहा है. इंपोर्ट हो रहा है. ऑल ओवर द वर्ल्ड इंपोर्ट हो रहा है. हाँ. उसमें से इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है, आई थिंक दैट इज 14,000 करोड़ जो देखा हाँ, था. बिल्कुल, बिल्कुल. 14,000. फिर नेक्स्ट जो स्लाइड में देखा था, इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ दैट कोड. या बिल्कुल. So how is that an opportunity for India when India is already an importer of that gold? How is it an opportunity for India to fulfill that gap, because we are already importing? देखो इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए ना गवर्नमेंट ने यान के ऊपर BIS लगाया. वो तो लगा दिए, सो व्हाई? बट इंडिया के ऊपर BIS लगाया, चाइना के ऊपर दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिया, बट स्टिल द अदर कंट्रीज आर स्टिल इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना. इट्स परफेक्ट. So So the how- question is that why we cannot? Yes. Absolutely, what I am telling is that बॉस केशू नट एक्सपोर्ट इंडिया से दुनिया भर का होता है, एंड फिर भी हम केशू नट वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं. सुपीरियर केशू नट यू आर एक्सपोर्टिंग टू दोज कंट्री जो कि बड़ा पैसा देते हैं, लेकिन लोअर क्वालिटी केशू नट वी आर इंपोर्टिंग क्योंकि हम काजू कतली बनाना चाहते हैं. बॉस व्हेन यू सी द डेटा ना, उसको प्रॉपर समझे. जिस प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट के अंदर जो वैक्यूम है उसमें बहुत सारा आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यू आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. तो जिन प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माइट बी हैपन कि वो प्रोडक्ट एक्सेसिव इंडिया में बन रहा हो, तो यहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट खत्म होकर आप बाहर जा रहे हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी प्राइसिंग मिल रही है, सो यहाँ पे आप नहीं बेचना चाहते हो, बट उसके सामने इंडस्ट्री कितना बड़ा चल रहा है, तो वी नीड टू इम्पोर्ट ऑल्सो ना. तो अगर हम उन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करें, जिस स्केल पे आप चाइना करता है,
एब्सोल्युटली इन अपकमिंग टाइम दोज कंट्रीज जो आप चाइना से इंपोर्ट करते हो आपसे इंपोर्ट करेंगे. दैट्स द गैप व्हाट आई एम शोइंग. एम आई क्लियर? मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन बहुत डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है कि चाइना का जो प्राइसिंग वो डाउन भी हो सकता है कि उनका क्वालिटी अच्छा भी हो, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल सब कुछ है, क्योंकि देयर आर सेवरल प्रोडक्ट जिसके अंदर पिछले 10 सालों में पहले जो चाइना ऑलरेडी काम करता था उसके अंदर हमने ऑलरेडी अपना बहुत अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ाया. लाइक जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल, इट इज अ सिरामिक. Just get out the data of 2011. China was the largest exporter in the world. Right now, Morbi is the largest exporter in the world, and so India. Second number is plastic. China was the largest exporter in 2022. 2023 वो तो largest है ही, but हम लोग 2022 में 8 नंबर पे थे. Right now at the 3 number. Pharmaceutical. We were in 2021. We were at 6th number. Right now we are the first number. That's what our export we are increasing, क्योंकि हम मानते हैं कि बॉस बना तो हम भी सकते हैं, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज इधर अवेलेबल है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी है. एंड इसलिए मैं मानता हूँ कि इंडिया इज द परफेक्ट प्लेस, जो कि जियोग्राफिकली भी बहुत परफेक्ट जगह पे है. नक्शा खोल के देखो बस, तुम्हारे दोनों तरफ पे कनेक्शन बहुत इजी होता है. तुम्हारे नीचे वाला जो पूरा पार्ट है जहाँ से आप पूरा का पूरा कोस्टल लाइन पकड़ते हो, ये कोस्टल लाइन की एक तरफ पूरा अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका आप कनेक्ट कर सकते हो और एक तरफ पूरा फार ईस्ट. बॉस इतना परफेक्ट लॉजिक जियोग्राफिकल पोजीशन पे कोई कंट्री नहीं है. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. सो थोड़ा सा रिसर्च, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि बॉस जिस प्रोडक्ट में ऑलरेडी चाइना इतना काम कर रहा है और जहाँ पे सस्ता बना रहा हो वहाँ हम काम करें. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. देखो उल्टी नाव तो चलानी है ही नहीं अपने को. पानी इस तरफ जा रहा है, सोचो ना આપણે તો કંઈક અલગ જ કરવું છે कि आलो उल्टी नाव चलावे. जिंदगी में कोई डिस्टेंस नहीं कर पाए. फाइंड आउट दोज प्रोडक्ट जहाँ पे ऑलरेडी नाव चल सकती है, बस आप उनको पकड़ो और आगे बढ़ो. आप फ्लो तो जा ही रहा है, तुम्हारा नाव में बैठो, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस फास्ट कटेगा. दैट्स व्हाट माय फोकस. थैंक यू सर. आई होप यू गॉट द आंसर. डन. नेक्स्ट एनीवन? સર ના ના, બીએ સટાવેલું નથી, એના ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી સ્ટે આવેલો છે. સ્ટે આવ્યું ને એની જસ્ટ હમણાં એ ભાઈનો ક્વેશ્ચન સ્ટે આવેલો છે. એનીવન? anyone? Otherwise I am inviting you all on the 17th. હમણાં 17 તારીખે એક ચેમ્બરમાં જીએફઆર આપણે જે જૂની નાનપુરા બિલ્ડિંગ છે ત્યાં. હા, 2 મિનિટ મિત્રો, 2 મિનિટ. 2 minutes only. હેલો, 17th એટલે કે આ સેટરડે સાંજે 5:30 વાગે સમૃદ્ધિ ખાતે અમિત સર લગભગ 2 થી 2.5 કલાકનું આખું ઓવરવ્યૂ આપશે અને ત્યાર પછી 18, 19 અને 20 તમને બળે ઉજવવા માટે ટાઈમ આપશે અને 21 તારીખથી એમનો બેચ શરૂ થઈ જાય છે. મોર્નિંગ 8 o'clock સમૃદ્ધિ ખાતે 4th ફ્લોર પર અને તે 6 તારીખ એટલે કે 6 સપ્ટેમ્બરે પૂરો થઈ જશે. આ એમનો શોર્ટેસ્ટ સ્પાન વાળો બેચ છે. બાકીની તો અમે લોકો શું કરીએ છીએ, 3 દિવસ એમ કરીને 4 વખત લઈએ છીએ એટલે 1 મહિનો થઈ જાય. પણ આ એકદમ શોર્ટેસ્ટ સ્પાન વાળો શેડ્યુલ છે. પ્લીઝ જોઈન. અને જસ્ટ 12,500 રૂપિયા ફી છે પ્લસ 18% જીએસટી. ગોવાના ચોથા ભાગ. હા, ગોવાના ચોથા ભાગ. અને તમે ચેમ્બરના મેમ્બર તો 10% ડિસ્કાઉન્ટ. ખ્યાલ આવી ગયો? અને રોજ ત્યાં બેચની વચ્ચે જ ચા કે કોફી મારા તરફથી બિલકુલ બિંદાસ. ચેમ્બરના એક મેમ્બર બની અને આ જે બધી વિગતો છે, જે પણ આ ટેકનિકલ કોર્સ આપણા બને છે જીએફઆરસીમાં થાય, એ પણ આપણને સતત મળતું રહે. એટલે આવા બધા કોર્સમાં ચેમ્બર છે સ્પેશિયલ 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે અને ઘણા બધા વિવિંગ સાથે જોડાયેલા પણ કોર્સ છે, આવા ટેકનિકલ કોર્સ છે. ટેસ્ટિંગ અગર આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ સક્રિય રીતે કામ કરીએ છીએ અને આપણા ફેબ્રિક્સના કે યાનના કોઈ સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ છે તો
તો બેને જેમ વાત કરી એ પ્રમાણે સેમ ડે અથવા વિધિન ધ સેકન્ડ ડે આપણને ટેસ્ટિંગના રિપોર્ટ મળે છે. ઘણી બધી સુવિધાઓ છે. ફક્ત ચેમ્બર એ લાઇઝનિંગનું કામકાજ નથી કરતું, પણ આવી ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરે છે. આપ ચેમ્બરના મેમ્બર બનીને પણ આ જાણી શકો છો. સાહેબે જે વાત કરી એ પ્રમાણે ડેટા એનાલિસિસ છે એ મેઇન કોર છે. આનું હાર્ડ છે કે ડેટા એનાલિસિસ કરીને પણ બિઝનેસ કરી શકાય છે, અને એન્ડ ઓફ ધ લાસ્ટ કે માઇન્ડસેટ, આપણો કેવો માઇન્ડસેટ છે કામકાજ કરવા માટેનો, એ ખૂબ અગત્યનું છે. થેન્ક યુ અમિતભાઈ. અને હું ભાઈને કહીશ કે છેલ્લે આભાર વિધિ આપ કંઈક કરશો. બેને જે ટેસ્ટિંગની વાત કરી, યાન કે ફેબ્રિકનું ટેસ્ટિંગ, તો તમારે યાન કે ફેબ્રિકનું કોઈ ટેસ્ટિંગ કરાવવું હોય તો સેમ્પલ તમારે નાનપુરા ઓફિસ પર અત્યાર સુધી આપવું પડતું હતું. પણ ચેમ્બર એક ફેસિલિટી શરૂ કરી છે. આપણે અલગ અલગ વિસ્તારમાં કલેક્શન સેન્ટર શરૂ કર્યા છે. જેમ કે રિંગ રોડ ઉપર એક સેન્ટર છે, તો એ બાજુના કોઈ પણ વ્યક્તિ રિંગ રોડ પર એક કલેક્શન સેન્ટર ઉપર આપનું યાનનું કે ફેબ્રિકનું સેમ્પલ આપી દો, ત્યાંથી સાંજે ચેમ્બર ઉપર એ સેમ્પલ આવી જશે અને બીજે દિવસે તમને રિપોર્ટ મળી જશે. એવી જ રીતે સચિનમાં છે, ટીપોદરા છે, કડોદરા છે, દરેક જગ્યાના સેન્ટરો ઊભા કરેલા છે. એટલે વધુ માહિતી એવું હોય તો આપ સેજલબેન પાસેથી લઈ લેશો, જેથી આપણે છેક ચેમ્બરની ઓફિસ સુધી સેમ્પલ આપવા આવવાની જરૂર ન રહે. થેન્ક યુ. Well, friends, let's conclude. But before that, I want to say that if you want to be a member of the SGCCI અને તે છતાં તમારી પાસે ટાઈમ નહીં હોય, તો અમારી એક ફેસિલિટી છે. અમારા માણસ અહીંથી તમારે ત્યાં આવીને ફોર્મ ભરી આપશે, ચેક લઈ જશે. એક નંબર આપું છું, અગર જો તમારે નોંધવું હોય, અશ્વિનભાઈ દંતાણીનો 90236 73346. અને ચેમ્બરના મેમ્બર બનીને પણ ત્યાં આવવાથી ઘણો બધો આપણે કન્સેશનલ રેટ મળી જાય છે. અને ચેમ્બરના મેમ્બર એટલે જસ્ટ 15,000 પ્લસ 1,000 એન્ટ્રી ફી એટલે 16,000 પ્લસ 18% જીએસટી એટલે 18,880 રૂપિયામાં કેટલું મોટું નેટવર્કિંગ મળે. અને આવા કેટલાય કાર્યક્રમોમાં હાજર રહેવા માટે તમને આમંત્રણ મળે. એટલે અને જો એક્સપોર્ટ કરવાના હોય ને એક્સપોર્ટના બિઝનેસમાં જવાના હોય તો ચેમ્બરની સાથે જોડાવવું તમારા માટે ખૂબ જરૂરી છે. સો થેન્ક્સ ટુ એવરીબડી. અમારા જે ઓફિસ બેરર્સ છે તેમનો થેન્ક્સ, સેજલ મેડમનો થેન્ક્સ, આપ સૌ અહીંયા આવ્યા છો તેમનો થેન્ક્સ, અમારા સરસ મજાના ફોટોગ્રાફર છે એનો થેન્ક્સ, મેમ્બર કોઈ પ્રેસ મીડિયામાંથી આવ્યો હોય તો તેનો થેન્ક્સ, અને ચેમ્બરના સ્ટાફ જે હંમેશા ખડે પગે હાજર હોય છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સો થેન્ક યુ એવરીબડી. અને વિશેષ આભાર આજે જે બહુ સરસ મજાની એમઓસી કરી એવા મહેન્દ્રભાઈ ઝડપિયા, એ પોતે સુરતમાં જે સિક્યોર એમ્બ્રોડરી જરી એન્ડ થ્રેડ એસોસિએશન છે એમના પ્રમુખ પણ છે, અને આપણી ચેમ્બરની જરી કમિટીના પણ ચેરમેન છે. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણે અમિતભાઈ અને એમની ટીમ માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ અમિતભાઈ.